down. Okay, if your GDSC have a chapter before, then surely उसमें नाम होगा. Just scroll it. If अगर search करने पे नाम नहीं आ रहा है, for example international का DYPIU का नाम नहीं आता है after we search it, so just scroll it down. ठीक है, scroll करने से नाम दिख जाएगा वहाँ पे. यस, एंड डीवाईपी सीओई का क्या है कि लाइक आपको एकदम टॉप पे नहीं मिलेगा. यू विल हैव टू स्क्रॉल इट डाउन अ बिट एंड उसके बाद इट्स डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. ठीक है, यू विल हैव टू बी. एंड यू नो इवन इन दिस मीट देयर आर टू डिफरेंट डीवाई के लीड्स. शी इज फ्रॉम आईयू एंड आई एम फ्रॉम सीओई. सो प्लीज ऐसा मत करना कोई आईयू से होगा तो वो सीओई का फॉर्म हाँ, भर दे, या फिर सीओई से कोई आईयू का फॉर्म भर दे. डोंट don't डू do दैट. that. It's a very like frequent mistake which people do. Okay, so like you have to be very sure. अगर आपको डाउट है तो just contact us कि मैं इस चैप्टर का हूँ, मुझे कौन सा सिलेक्ट करना. We'll happily reply to you. But गलत चैप्टर नहीं भरना चाहे कुछ भी हो जाए, because your application might get disqualified or even if you are selected later it will be terminated अगर आप उस कैंपस के लीड नहीं हो. So that is a very And important thing. not just for that particular question, किसी भी question में कुछ भी doubt हो, थोड़ा लग रहा है कि this is doubtful, just don't go for it. ठीक है, पूछ लो पहले, ठीक है, confirm कर लो and then go for it. Okay, so we have still people are joining. We'll be starting sharp at 8:50. Okay, in 4 minutes we'll be starting. And तब तक Guys, के लिए हैंड join रेज करके बता दो who is from DYP COE. और join जैसे कर रहे हो, join it from the account which you have done RSVP. ठीक है, यहाँ पे why they are Yeah, showing it unverified? I don't know. yeah. Okay. Okay, DYP COE से how many people are there? Two of them Okay, raised I can hand. see some hands. Okay, okay. Great, 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 great. Awesome. Because हमने without login join किया है. अरे no worries. हम एक काम करते हैं अनुष्का, अपन लाइक बाद में अटेंडेंस लिस्ट मिल जाएगी ना, यहाँ से डाउनलोड करके विल वेरीफाइड कि कौन कौन ये. I guess link use कर रहे तो directly हो जाना चाहिए. Let me just check because या आई थिंक वो मे बी मैंने कम्युनिटी पे भी मुझे डाला है तो मे ऑलरेडी बी. 10 चेकिंग्स दिखा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो आई गेस हो ओके जाना ओके चाहिए. ओके. यस यस, फाइन. Yeah, there are 15 check-ins already. No problem. It is working. ओके. Yeah. बाकी सारे DYP आयु के हैं? DYP आयु से कौन कौन है? Raise your hands, guys. Yeah. है. Okay. जो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हो कहाँ से? they are just here. शांत बैठ के सुनने वाले लोग हैं वो. Okay. Me from IMR, sir. That's great. So Medley was about to join, but the thing is, she was unwell, so she couldn't make it at the last minute. But it's okay. Like we'll be telling about IMR as well. So हमारे लिए सब लोग एक बराबर है. It's not like IU, IMR. So we all are like कि DYP के अच्छे leads बनने चाहिए तीनों campuses से. Because we all share a common campus, and I really believe that we all are like सारी GDSEs. If the GDSEs in our campus they conduct good events and grow really well, I'm sure like our campus would be recognized as a whole. कि okay, इस campus से like the events are really good. Yeah, इस campus का GDSE is very active. ओके, सो आई रियली होप कि नेक्स्ट ईयर जो भी लीड्स बन रहे तीनों कैंपसेस, लाइक तुम लोग कोलैबोरेशंस कर सकते हो, तुम काफी कुछ कर सकते हो. बट जस्ट मेक श्योर कि तुम बहुत ही अच्छी इवेंट्स डिलीवर करो एंड बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवरी करो. ओके. ओके, विल स्टार्ट क्या? आई थिंक देयर आर पीपल विल कीप जॉइनिंग. वी कैन स्टार्ट मे बी. Just a minute. Give me a minute. या श्योर. Yeah, we'll continue. चलो, we'll start. Yes, We'll just start one at 15. second. Okay, yeah. I'll just share my screen. Just give me a heads up कि screen दिख रहा है कि नहीं. You're recording, I'll just right? share. Yeah, I'm recording. I'll just share it. Okay, my screen is visible. Yes. Okay, great.
So very good evening to one and all present here. I know we are starting this event a bit late and it should be like a good night, but yeah, we'll go with good evening. Okay. So very good evening to one and all present here. And so basically today, like the motive of today's session is for the hunt of GDSC lead. Okay. So like we'll be searching for one such leader from each campus. जो आगे like काफी अच्छी events कर सकता है या काफी अच्छा lead बन सकता है and who can lead this club. Okay. So, like the event which you are attending today is a part of the Road to GDSE program. So, what is Road to GDSE? Road to GDSE is one such program जिसमें हम लोग like जो ex leads है वो जो current leads बनने वाला है उनको guide करेंगे. They'll tell them कि like आपको GDSE lead क्यों बनना चाहिए, like application process क्या है, and what are the advantages of becoming the GDSE lead. Okay. So, on a scale of 1 to 10, how motivated are you to apply for GDSE lead application in 2024? Like मुझे chat box भरा भरा दिखना चाहिए. Everyone should like type an answer. कि 1 to 10 में how many want to like how much are you motivated? Yeah. Nice. Are there responses? I can't see the chats. Okay, Advait, got it. Bus. Okay. Okay. I'm sure you guys are really motivated. Okay. So like the first step of becoming a GDSE lead. अब तक आप में से काफी लोग कोर टीम में रहे होंगे या फिर you guys must have been like the members of GDSE who are attending the events doesn't matter. Like one of the most common questions which comes to me is क्या हमें कोर टीम में रहना कंपलसरी है तब जाके हम GDSE लीड बनता है. So definitely not. It's not at all compulsory. ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखा है. Like you can see the application process. You have to submit your application plus YouTube video. This is the overall gist. Appear for the diagnostic test. Appear for the final virtual interview. So these are the 3 steps. यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी step नहीं है जिसमें ये like बता रहे हैं कि you have to be in the core team. Okay, so these are the 3 steps overall. Like what you have to do. And now we'll be breaking down these steps थोड़ा थोड़ा कि हर एक step में आपको कैसे करना है. Because the application is not as simple as it looks. अगर आप भरोगे you might commit such mistakes कि like कैसे करना है. एंड शायद हमने भी वो मिस्टेक्स की है या काफी लोगों ने की है जिस कारण से उनके एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो चुका है. सो दीज आर सम ऑफ दी स्टेप्स. ओके, सो डीमिस्टिफाइंग द एप्लीकेशन सबमिशन. we'll be doing that. Okay, so ये क्वेश्चन से पहले we'll jump on to the main application जो आपको दिखेगा. like कैसे दिखेगा आपको, we'll go to that. Okay, so मैं थर्ड स्टेप पे ही आ गई हूँ. सो ये प्रीवियस स्टेप्स में क्या है, बस आपको क्या करना है, अपना ईमेल, कॉलेज का वेबसाइट, इन शॉर्ट सब डालना है. ओके, एंड यहाँ पे व्हाट यू हैव टू पुट इज, यहाँ पे आपके जो लिंक्स होते हैं जैसे स्टैक ओवरफ्लो हो गया, गिटहब हो गया, जो भी यूट्यूब हो गया, एंड एवरीथिंग, ऑल द लिंक्स यू हैव टू पुट. सो वन थिंग विच आई वुड से इज लाइक आप में से काफी लोग होंगे जिनके पास ऐसा होगा कि मेरे पास स्टैक ओवरफ्लो एग्जिस्ट नहीं करता, या आई डोंट हैव दिस एक्स का अकाउंट, मेरे पास एक्स का अकाउंट नहीं है. सो दिस कम्स इन द सेकंड स्टेप जहाँ पे आपको सारे लिंक्स भरना. सो यू विल बी लाइक मेरे पास एक्स का अकाउंट नहीं है, सो आई शो इट, लाइक आई शो द प्रीवियस. ओके, so this is the so I just put a random link, मैंने कुछ नहीं डाला. So these are the social links. Okay, so like सारे links आपको डालने होते हैं. So the thing is, अभी आपके पास बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे पास क्विक लैब्स का अकाउंट नहीं है या मेरे पास डिस्कॉर्ड नहीं है, so मैं क्या उसे खाली छोड़ सकता हूँ. So please don't leave it empty at all. ये गलती मत करना. Even if you are not active on X or not active on Discord, please make sure कि आप सारे details भरो अच्छे से. Create an account and fill it. Creating an account hardly takes some 2-3 minutes, and you have to fill it because आपके प्रोफाइल पे दिखेगा. No one will open all the accounts and see कि आपने क्या किया है. Especially LinkedIn. LinkedIn is a must. LinkedIn तो आपको होना चाहिए, and LinkedIn, Stack Overflow, GitHub, these are some of the accounts which should exist. क्योंकि evaluation में वो लोग सब ये पे सब काफी ओपन देखते हैं. करके रख लो, ठीक है. एवरी अकाउंट तुम अकाउंट ओपन करके रख लो हर एक चीज पे. नाउ फॉर एग्जांपल मैंने ट्विटर में अभी भी यूज नहीं करती, बट आई स्टिल हैव एन अकाउंट ओवर देयर, ठीक है. क्यों? क्योंकि मैंने लीड के लिए अप्लाई किया था. एट दैट टाइम आई क्रिएटेड इट एंड वो ऐसे ही पड़ा है. दैट डजंट मैटर तुम एक्टिव कितने हो, ठीक है. लिंक्डइन पे एक्टिव होना जरूरी है बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है. बिकॉज तुम्हारे करियर पर्सपेक्टिव को लेके लिंक्डइन वेरी इंपॉर्टेंट. तो लिंक्डइन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन गिटहब इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहाँ पे एक्टिव रहो. मीडियम इज समथिंग इंपॉर्टेंट, यू कैन पोस्ट समथिंग. तुम अभी अकाउंट बना रहे हो तो एक आध ब्लॉग बना के डाल दो इसके ऊपर. दैट डजंट टेक एनीथिंग, ठीक है. एक आध दिन जाएगा तुम्हारा उसमें. यू जस्ट पोस्ट वन ब्लॉग, नथिंग, जस्ट एक आध ब्लॉग पोस्ट करके रख लो. over. If personal blog page exists, then you can put that in other link का भी option है वहाँ पे, so you can put it Yeah. over there. So you Yes. have options over here. And first Yes, वाला yes. भी दिखा दे वर्षा, like the first
वाला या इसको फर्स्ट वाला, follow आई शो इट, यस, किया। एकदम स्टार्टिंग वाला पेज जब आप आओगे, हाँ दिस वन। सो यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल जस्ट टाइप डीवाई एंड देखना कितने सारे डीवाई आते हैं। सो ओके, ओके, सो द थिंग इज बहुत सारे डीवाई आएंगे, एंड सी देयर इज डॉक्टर डीवाई, देयर इज दिस डीवाई, ऐसे बहुत सारे डीवाई डीवाई आता है। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, फॉर डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ओके, सो ये तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोल्हापुर ये सिलेक्ट मत करना, आर इज डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो मैंने पहले डाला था, ओके पुणे आया था, डीवाई, वहां पे पुणे भी आया था। हाँ ओके, आया था क्या? हम्म। ओके वेट लेट मी सी, हाँ दिस इज डीवाईपी आईयू, ये अनुष्का का है, डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डीवाई ये पाटिल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट वालों इंजीनियरिंग। का भी है शायद, नहीं? यस यस, जस्ट अ मिनट, आई थिंक हमारी इसमें डॉट था, ओके। या देखो मुझे अभी भी नहीं मिल रहा है, इट्स लाइक दैट ओनली, मतलब आपको थोड़ा सा देयर ढूंढना इट पड़ेगा इज। एंड यू विल गेट इट। लेट मी सी। स्क्रॉल इट वर्षा, सो मैंने स्क्रॉल पहले कर जब लो। सिलेक्ट किया था, या सो मैंने जब पहले सिलेक्ट किया था, इट वाज देयर, सो आर्स इज डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ओनली, वेट अ मिनट, नहीं मिल रहा है गाइस तो स्क्रॉल कर लो, ठीक है, एक एक देखो बट या अपना जस्ट ही कीप सिलेक्ट करो, स्क्रॉलिंग, बट यू विल किसी हैव और टू का सिलेक्ट मत योर करो। चैप्टर ओनली, किसी और का सिलेक्ट मत करना। मैंने जो पहले सिलेक्ट किया था वही सही था फॉर डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड अनुष्का, अगर आप डीवाई पे आयु से हो, you'll have to select डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ओके, सो you'll have to keep scrolling थोड़ा सा, बिकॉज आई डोंट नो उन्होंने कैसे डाला, इफ यू कीप स्क्रोलिंग आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। दिस कोई इज और डालोगे? स्कूल ऑफ वो टेक्नोलॉजी दिखाया नहीं, कोल्हापुर। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वो बोल्ड में था, वही था ना? नहीं, आई थिंक दैट वाज फॉर कोल्हापुर, लाइक पुणे तो नहीं आया अभी तक तो। अच्छा, गलत नाम ओके डाल दोगे, बेसिकली, गलत चैप्टर डाल दोगे तो होल प्रोसेस विल गो इन या वेन अगेन। या वही, सो दिस इज डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ओके, जो अनुष्का का है, एंड वो यस, बोल्ड वाला ही था, वो बोल्ड वाला ही था। या आई वाज ओके, ओल्ड सीइंग वाला ही बोल्ड था वाला। क्या पहले वाला? हाँ अच्छा अच्छा, बोल्ड ओके किया था ना, ओके, वही था हमारा। हाँ हाँ, ओके 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 ओके, लिस्ट में, ओके, सो मे बी आई थिंक आ गया था, आई मिस्ड इट, यस, सो वील मूव अहेड, ओके, सो वील पुट इट, यस, ओके, ओके, सो लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम फ्रॉम डीवाईपी आईयू, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलेज का वेबसाइट डालना है, ठीक है, यू विल हैव टू पुट इन योर कॉलेज वेबसाइट हियर, एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यस, सो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यू विल हैव टू शेयर ऑल योर सोशल लिंक्स, एंड जिसमें क्या है कि लाइक योर वेबसाइट एंड ऑल ये हमने कवर कर लिया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सो द नेक्स्ट स्टेप इज जिसमें लाइक आपको क्या करना है, यू विल हैव टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस which are what is your motivation to run a Google Developer Student Club at your institution? What are your experiences leading a project or a team? And what is your experience with technology? Okay, so these are the 3 things. So the first thing is, what is your motivation to run a Google Developer Student Club at your institution? So the one tip which I'm giving you is, ये जो 2000 का word limit है ना, you will have to use it. Like आपको पूरी तरह से उसको use करना है. Because like क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, they just write 2-3 line का answer कि I want to inspire, like I want to elevate the coding in my college, या फिर I want to improve the knowledge of my peers, या फिर I want to help them. These are very valid points, but the thing is, you just write a very short application, like you just write 100-200 words for everything. So like 2000 का जो word limit है ना, आपको पूरा use करना है, like use it to the fullest, and आप अच्छे से लिखो like सारे answers. Okay, like what is your motivation to run? So please like जो एप्लीकेशन है, इट शुडंट बी लाइक कि ये जनरल आंसर, या प्लीज ऐसे चैट जीपीटी आंसर मत डालना कि ऐसे चैट जीपीटी में डाल के 2000 का वर्ड लिमिट एक्सीड करना है, नो, इट हैज टू बी समथिंग व्हिच कैन बी योर पर्सनल स्टोरी, कि ऐसा भी हो सकता है, यू कैन लाइक स्टार्ट इट विद समथिंग लाइक कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बिल्ड अ कोडिंग कम्युनिटी इन माय कॉलेज, बिकॉज इन माय फर्स्ट ईयर आई डिडंट गेट द एक्सपोजर आई वांटेड, या फिर इसमें एक्सपोजर नहीं मिला, यू कैन डू समथिंग लाइक दैट, कि आपके पर्सपेक्टिव से लिखो, because when you write an answer with your perspective, it makes it really interesting. Okay, that is the thing. And what is your experience in leading a project or team? You can be like something. अगर आपने कोई क्लब लीड नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपने कोई पीबीएल का प्रोजेक्ट लीड किया होगा, या फिर आपने कुछ तो लीड किया होगा, या फिर आपके पास कोई ऐसे ये होगा, लाइक कोई ऐसी सिचुएशन आया जिसमें आपने अपने खुद का इनिशिएटिव लिया, यू कैन सी एनीथिंग, ओके, सो इट कैन बी लाइक व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन लीडिंग अ प्रोजेक्ट और अ टीम, या फिर कोई हैकाथॉन में आपने लीडरशिप लिया, so please write it from your perspective. I'm repeating again and again. Don't write it from ChatGPT. कि ChatGPT ने ये किया वो किया.
they don't check for English, they want an interesting answer and they see कि तुम्हारा perspective कैसा. And yeah, at the same time, make it sure it is grammatically correct. क्योंकि आपका अगर गलत होगा grammatically, it will put a wrong impression. Okay, it won't put a good impression कि आपने like imagine कि आप evaluator and you're reading answers and आपने देखा कि बहुत सारे grammatical mistakes है. So please make sure आप जो answer लिख रहे हो ना, you put it on some जो भी website होगा Grammarly या फिर कोई website, आप एक बार उसमें check करोगे कोई grammatical errors तो नहीं है. Okay, you are getting ample of time. Answer कहीं लिख के रखो and just check it using this. And what is your experience with technology? So आप जो भी आपने किया, if you have participated in Cloud Study Jam, आप उसका लिख सकते हो. If you have participated in a hackathon, अगर आपने छोटी से छोटी चीज एक्सप्लोर किया, जैसे आपने Hacktoberfest एक्सप्लोर किया या फिर आपने कोई एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर किया, राइट? एवरीथिंग, डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग. आप ये मत सोचो कि ओके मेरा एक्सपीरियंस बहुत छोटा है, मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है. Just make sure कि you write everything. Like they have given the sub questions as well. What developer technology do you find most interesting and why? What does technology have in your community and how have you shared your experiences with technology products and platforms? So make sure you read all of this and write. Okay. So Anushka, you want to add something? Yeah, so these are the sub points, ये जो sub questions है ना, तो these are the content they're expecting from you, ठीक है? उस आंसर के लिए वो कंटेंट चाहिए उनको, stick to that question, ठीक है? Stick to that sub questions. For example, अगर first वाले question में हम जाएंगे, just scroll it down, Varsha. Yeah, sure. Yeah. So for the first question, they're asking like what motivation they are giving, right? So motivation के लिए first of all, I know you are all are here कि तुम खुद improve कर सको, अच्छे अच्छे swags मिले तुम लोगों को, ठीक है? तुम्हारा जो भी है networking बढ़े, these ये सारे तुम खुद के लिए कर रहे हो, but at one point you also should think about the community, ठीक है? Because it's a big community और तुम उसको चलाओगे in your campus, so make sure कि तुम ऐसा लिखो कि that not only you will get benefited, but the whole community will get benefited. And how you will benefit the community. तुम्हारी अलग सोच क्या है GDSC, go for it, ठीक है? After that, in the experience thing, as Varsha told, अगर तुम्हें कोई क्लब का लीड का एक्सपीरियंस नहीं है, you can simply put प्रोजेक्ट्स का भी नहीं है, पीपीटीज में तुम लोग ने जो ग्रुप पीपीटीज वगैरह किए आज तक, ठीक है, उसमें तुमने लीड किया है सबको, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वर्थ इट, ठीक है? जस्ट द थिंग इज कि तुम उसका मीनिंग बस इतना है कि तुम लोग टीम में काम कर चुके हो, तुमको कोलैबोरेटली काम करना आता है एंड यू कैन लीड दैट टीम, ठीक है? उसके बाद फॉर योर लास्ट थिंग, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन द विद द टेक्नोलॉजी, ठीक है? अभी इसमें बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? नहीं आता है मत लिखो, जो नहीं आता है वो मत लिखना, जो आता है वही लिखो. ये टेक्नोलॉजी आती है क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे. ये जो सब है दैट रिप्रेजेंट्स योर पर्सनालिटी. ये सारे क्वेश्चंस इसलिए कि आप उसको ये कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे वो इंटरव्यूअर के सामने. सो बेटर डोंट lie, ठीक है, at any point during the interview or during the form process. जो भी है ऑनेस्टली लिखो एकदम से, ठीक है? और उसके बाद कुछ भी फेंको मत इन द आंसर्स, ठीक है? एंड जैसे वर्षा ने बोला, वर्ड लिमिट है उतनी तो उतना लिखो, ठीक है? नॉट एग्जैक्टली 2000 ही वर्ड आने चाहिए, बट एटलीस्ट मेक श्योर कि 1500 से आगे हो, ठीक है? एंड या वन मोर थिंग, ये सब जब कर रहे हो, जस्ट डोंट राइट इट वंस एंड लीव इट. तुम उसको बार बार जाके रिव्यू करो, ठीक है? बिकॉज वेन एवर यू आर राइटिंग एन एसे और वेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग डिस्क्रिप्टिव, अगर तुम उसको बार बार रिव्यू करोगे, नॉट विद इन अ सेम आवर, ओके, थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिव्यू करना उसको, यू विल मेक चेंजेस इन इट, ठीक है? और वो बेहतर होता जाएगा वो चीज. सो अगर आज लिख रहे हो, कल जाके वापस एक बार रिव्यू करो, तुमको लगेगा कि नहीं ये लाइन की जगह पे ये नहीं, कोई और चाहिए थी, कोई और बेहतर चाहिए था. यू हैव टाइम, ठीक है? अभी डेडलाइन दूर है, तो उस टाइम तक आज बना लो एप्लीकेशन पूरा, पर कल तक, परसों तक और 5 दिन तक उसको एडिट करते रहो. नॉट कंपलसरी आज ही भर के उसको सबमिट कर दो, ठीक है? सो मेक श्योर कि ये पॉइंट्स तुम ध्यान में रखो. विल गो नेक्स्ट. Yes. Yeah. So basically, like आपको ये 3 questions तो clear है. Now the thing is the link to the video. Okay, so it cannot be a YouTube Shorts and it should only be a regular video. So the thing is like क्या है कि आपका जो 2 minutes का वीडियो है, सबसे पहले तो make sure कि 90 seconds, sorry, it's not even 2 minutes, it's 90 seconds. So आपका 90 second का जो वीडियो है, just make sure it doesn't exceed the timeline of 90 seconds. Because they have very strict policy कि 90 seconds का exceed हुआ है तो we'll only consider the first 90 seconds. And they don't have the time. Okay, like this year there are around 700 GDSE leads all around India.
So imagine the number of applications they are reviewing on a daily basis. Okay, they are reviewing so many applications and उनके पास उतना टाइम नहीं है कि they will see your whole 3 minutes का वीडियो जो तुम बना रहे हो. मुझे पता है कि आप 90 seconds में अपने आप को रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, बट मेक श्योर कि यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ ओनली इन 90 seconds. ओके, जैसे आप रेज्यूमे बनाते हो, आप रेज्यूमे एक पेज का बनाते हो, आप थोड़ी ना अपनी पूरी रामायण लिखोगे ऐसा 5-6 पेजेस का. यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन 1 page. So similar is this video of the GDSC lead application. You will have to represent yourself only in 90 seconds. Okay, 90 seconds में अपने बारे में बताना है. Okay, and the main purpose of this 90-second video is they'll see your body language and they will see how you are overall. Okay, क्योंकि देखो अगर आप उनको आपके बारे में जानना है, so they have these 3 questions. Okay, what is your motivation, blah blah. They'll know about you in these 3 questions. But the motive of this 90-second video is they want to see कि how are your communication skills plus how is your body language. Okay, एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो ऐसे स्क्रीन के सामने कोई पेपर रख के पढ़ते हैं, ठीक है, वो समझ में आ जाता है कि लाइक आप पढ़ रहे हो. सो डोंट डू दैट. आप क्या करो कि इवन इफ इट्स शॉर्ट या फिर तो आप ना मेमोराइज करके बोलने का ट्राई करो विद कॉन्फिडेंस, और डोंट इवन मेमोराइज, जस्ट स्पीक विद योर हार्ट एंड मेक श्योर इट्स अ 90-second वीडियो जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस लाइक इन डिटेल नहीं, just say कि you're from which college and you're applying and what is your motivation. Okay, and share why you believe you are fit to be a GDSC lead at your educational institution. You're welcome to tell us about yourselves and your interests. You can tell your interests, you can tell your motivation, you can tell why you want to become. Like आप ऐसे like क्या करना चाहते हो? Like what is the difference which you're gonna make when you become the GDSC lead? So this is the thing. इस वीडियो का मोटिव ही यही है. Okay, so you want to add anything? Yeah, just stick to the sub questions. That's it. Okay. Yeah. Okay. Yes. So after this, like ये जो हो जाता है, like we'll enter everything, and उसके बाद जो next step होता है after this, I'm not sure कि उसमें 4 and 5 में क्या आता है, but I think mostly ये जो first step का application है ना, इसी में खत्म हो जाता है. 4 and 5 में थोड़े terms and agreements आते हैं कि like we are storing your data, जो भी you'll just have to take out all the agreements. That is it. Yeah. So you will have to just take out all these 4 and 5 ke jo sub questions and terms and conditions, and you will proceed. So what is the next step? Basically, the next step is, as you can see here, okay, the right way to answer. So I wanted to show this thing. For assessing your technical skills and experiences, the right way to answer is 6-star coder. I have solved 1000. It's okay अगर आपने इतना सब किया भी नहीं है. No worries. मैंने जब apply किया था मैंने भी नहीं किया था इतना सब. Create a burden. 6-star coder आता था. I'm not a 6-star coder. Then, okay, example of incorrect way to answer. I am a digital program that runs on a computer. Okay, please don't do such grammatical errors. Okay, you are not a digital program that runs on computer servers and utilizes complex algorithms. Okay. Then general information on different types of technology, hardware, software. यार ये सब मत लिखो. Okay, like अगर आप chat GPT पे डालोगे the input, I'm very sure वो ऐसे आंसर जरूर देगा. I'm sure. Okay, maybe it might be a bit more creative, but you have to write it from your perspective. Okay, my team won the first prize in designate. You can also write कि I'm from core team. अगर आप core team में हो, you'll have to tell आपने क्या सीखा है. It definitely like puts a good impression. Okay, you are in the core team. मतलब आपको काफी कुछ पता है. Like GDSC चलता कैसे है and all such stuff. You know about it already. Okay. Then why is it important to submit? Yeah. 1 minute, Vaishali. Yeah. Let me just take the chat wala questions. No, Advait, Okay. you can't just 2 minute का वीडियो बना के उसको तुम playback speed उसकी बढ़ा के, don't do that. ठीक है, वो बहुत गंदा लगता है. Okay, that's the question. Wow. उसके बाद secondly, just be confident. Okay, वीडियो में दिखाओ that you are confident and excited for the upcoming thing. ठीक है, they are not going to judge your content over there. They are going to judge your communication skills, your confidence, how you're presenting. That's it. वो तुम्हारा कंटेंट देखेंगे नहीं, क्योंकि जो उनको चाहिए उनको एप्लीकेशन में मिल गया है. ठीक है, ऑलरेडी वो 90 सेकेंड्स में बस तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे पर्सनालिटी, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटेड यू आर. दैट्स इट. Yes, yes. And don't do these things, playback speed वगैरह मत बढ़ाना. Okay. Yeah, don't do such things. Okay. Yes. So यहाँ पे ये screen, this is very like valuable for you guys in case you have some doubts in videos. Clear your background, make sure there is no background noise, look in the camera, and lastly start with a smile. Yeah, please smile. Please ऐसे boring सी शक्ल लेके मत जाओ. मैं खुद भी नहीं देख पाऊंगी वैसे videos. Then prepare your script, keep the content short and crisp, revise the script beforehand for confidence. And in case अगर आपको लग रहा है आपका video कैसा है, you can just send it to us.
लाइक आईयू वाले अनुष्का को भेज सकते हो, सीयूई वाले मुझे भेज सकते हो, जस्ट लाइक आस्क अस कि अगर इनकेस आपको लग रहा है कि आपको कोई एडिशनल फीडबैक चाहिए, आपको लग रहा है कैसा है, we'll happily review it and we'll get back to you with such some additional feedbacks and everything. Okay, just drop in a text on WhatsApp and we'll get back to you. Okay. Yeah, these are So some of the Akshat is things. Make sure asking, all the yeah. okay, Varsha, Akshat is asking, what if I am in the core team, but we didn't have any events during the tenure? So that really doesn't matter. Just say Okay. that you can say in your Yeah, yeah, experience that you were in the core team. Okay. So yeah. that is, I guess, a good impression because you know how GDSC works. But they really don't know if you have conducted any events or not, you have any experience or Yeah, not. Just actually, say I that. was about But to you tell can this put that only. point. But you can put that Yeah, point that you are there, okay, in the team, yeah. but तो you ये can't सीक्रेट just रहना showcase your चाहिए. experience. या किसी को बताना मत, बट दिस इज अ रिस्क फैक्टर. ओके, दे डोंट नो कि आप आपकी जीडीएससी ने कितने इवेंट्स कंडक्ट किए. दे वोंट कम एंड सी. So basically you can tell, like, don't lie about it, but just tell कि I was in the core team and I, like, basically even if you haven't conducted an event, आपने जो सीखा है, जैसे you can Just tell leave a it there. hypothetical event. Yeah. या फिर वहां पे छोड़ दो कि मैं कोर टीम में था and just leave that point over there and jump to another. That's it. Yeah, exactly. And you know, like it is on a risk factor, but they don't usually see कि आपने कितने events लिए हैं. So maybe you can Yeah. create one hypothetical event. मतलब एक event बनाना and बताना कि Yeah. I volunteered here. कि अगर in case even if outside GDSC, हो सकता है GDSC core team में और आपने कहीं और volunteer किया, just tell that volunteering experience कि मैंने And यहाँ पे Akshat, I volunteer guess किया है. एक आध इवेंट हुआ है शायद IMR का, IER का. I don't know what Okay, is the okay. full हाँ, form of it. you can literally tell about those two events. एक आध event भी हुआ है ना, तो भी उसको ही बढ़ा चढ़ा हाँ, के थोड़ा बोल डाल दो दो. कि ये इन्फो event सेशन हमारा आई गेस मेजर हुआ सबका था. हुआ है तो, एंड क्लाउड का भी हुआ है राइट, क्लाउड जैम्स भी हुआ है, सो यू कैन जस्ट पुट इन, इट्स ओके. या उसी को बढ़ा चढ़ा के बोल दो. Done. पूरा. And these are some plus pointers. Make sure all the social media links are working, no typos. Double check all the subjective answers for grammatical and spelling mistakes. Make sure all the required fields are submitted. Make sure you have provided the correct chapter name and city. Yeah, so basically when जब मैं सर्च कर रही थी मुझे ये नहीं मिल रहा था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बट इट इज डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे. जो मैंने एकदम पहले डाला था ना वही सही है. आई डोंट नो, शायद उसका कोई ग्लिच होगा या फिर ऐसे, या फिर मैंने मिस आउट कर दिया होगा. बट इट इज डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डैश पुणे. There is no Kolhapur, nothing, nothing. D.Y. Patil College of Engineering dash Pune, and for Anushka, it is D.Y. Patil International University. And if it's someone पुणे. from DYP IMR, it is D.Y. Patil College of Engineering and Engineering Management and Research Pune. Pune आना चाहिए, okay? Don't select some Kolhapur का college, even if the name is same. तीनों में पुणे आना चाहिए, ठीक है, तीनों कॉलेजेस. Yes, yes. And stick to your own chapter, man, please. Yeah. No control plus C, control plus V, no. Control plus create. Yeah, don't do this chat GPT से control C, control V. They are Okay, so these are Googlers, some okay, of the they'll things. understand it easily. तुम लोगों ने क्या कहाँ से छापा है, Yeah, ठीक है. yeah, Do that. yeah. Okay. So I think PPT one का content is over. Just 1 second. I'll just share another PPT. PPT number 2. Till that time, कोई भी doubts है तो you can ask in the chat box. Okay. What is the last date they're asking? 27th of March, I think. Okay, yes, I got some really good thing. This thing I want to share it with you guys. Number 3. Okay, I think this one is not good. This is very good. Yeah, I was searching for this only. Okay, so I'll share my screen again. Just make sure it is visible. Okay, great. Yeah. So they don't have a PPT on the diagnostic test, but we have this on interview process. Okay. So diagnostic test का I'll tell in short क्या होता है. So जैसे ही आप link submit करते हो, within I think 1 or 2 weeks you will get this diagnostic test. So diagnostic test भी March 27 के time frame में ही आ जाएगा. March 27 मार्च के month में ही. तो जैसे आप लीड का application submit करते हो, within 2 weeks you will get this diagnostic test का link, and वो सबको आता है. सो द थिंग इज, जो भी आपके ये सारे राउंड्स है ना, इट इज एन एवेल्युएशन राउंड. मतलब हर राउंड के बाद थोड़े थोड़े लोग निकलते जाते हैं. डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए सिर्फ कुछ ही लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, एंड आफ्टर इंटरव्यू सिर्फ एक ही लीड शॉर्टलिस्ट होता है.
देयर इज नेवर कि कैंपस में से 2 लीड सिलेक्ट होते हैं, देयर इज ओनली 1 लीड. So for diagnostic test, the thing is they'll give you some basic, मतलब जो क्वेश्चंस है ना एप्टी होता है. हमारे टाइम पे इट वाज एप्टी. एप्टीट्यूड मतलब जिसमें क्वांट्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, थोड़ी सी टेक्निकल क्वेश्चंस आता है, एंड इट्स नॉट दैट हार्ड. मतलब थोड़े बहुत कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना होगा, या फिर थोड़े से, मतलब इट्स नॉट एट ऑल दैट हार्ड. अगर आपने आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो कोडिंग क्वेश्चन तो इजीली बन जाएंगे. एंड इट इज अ प्रॉक्टर्ड एग्जाम. ओके, आपको आपका कैमरा ऑन करना होगा एंड आपको घर से कहीं से भी देना होगा. यू विल बी गिवन दिस टाइम फ्रेम कि आपको इस टाइम के बीच में ही टेस्ट अटेम्प्ट करना. एंड वी हैव दिस लीडरशिप एंड पर्सनालिटी टेस्ट उसके बाद. सो आफ्टर दिस एप्टीट्यूड का टेस्ट जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और वर्बल एबिलिटी सब हो जाता है, जिसमें इंग्लिश वगैरह सब टेस्ट करते हैं, दे हैव दिस लीडरशिप टेस्ट जिसमें आपको सिचुएशंस दिए जाएंगे, उस हिसाब से आपको ये बताना होगा कि हाउ विल यू रिएक्ट. मतलब they have these parameters, least likely, most likely, very likely. They have these parameters and आपको उस parameter के हिसाब से you'll have to tell कि मैं ऐसे react करूंगा. And it like you'll have to react it in a very fast manner. Okay, आपके पास time कम होगा हर question के लिए, and you'll have to be very fast while answering those questions. So make sure कि you answer these questions honestly and don't be really biased with those questions. Okay, like ऐसे questions भी आते हैं कि I believe I'm the best. ठीक है, तो हो सकता है कि sometimes like be a bit more key, like the questions are like, sometimes the questions are like I'm the best or I have the best ideas in the room. So don't be like ki most likely like I'm the best, I believe karta hu. Like be a bit ki I'm open to more ideas, I'm open to learn. Don't assert ki main hi best hu, mujhe sab aata hai. Even during the interviews it is very important. Okay, we'll come to the interview part later, but this diagnostic test ka kya hai ki just assert ki like after this aptitude कि जो लीडरशिप का टेस्ट होगा, आफ्टर दिस लीडरशिप टेस्ट दे चेक योर पर्सनालिटी की हाउ यू विल रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस. दैट्स व्हाई वो आपको एक कम टाइम फ्रेम में बहुत सारे क्वेश्चंस दे देता है. सो उन क्वेश्चंस में आपको एकदम ऑनेस्टली आंसर करना है, बट एट द सेम टाइम यू विल हैव टू कीप अ चेक ऑन योर एटीट्यूड कि आप कैसे हो. आर यू हम्बल एंड आर यू विलिंग टू लर्न, और आर यू लाइक अ रियली बोस्टफुल पर्सन. सो दे विल चेक ऑल दैट. एंड इट्स वेरी सिमिलर टू जो प्लेसमेंट प्रोसेस होता है. इवन द कैंपस प्लेसमेंट्स जो आपकी थर्ड ईयर के सेकंड सेम्स ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, उसमें क्या है कि दे विल हैव दीज एप्टीट्यूड टेस्ट एंड दे विल आल्सो हैव दिस पर्सनालिटी टेस्ट जिसमें हम आपको एवेल्युएट करेंगे बिफोर दिस टेक्निकल राउंड्स. So it's very similar. So even if you are participating in this application process, just believe कि आपको ना एक real company का experience मिल रहा है, placement experience, and it is very valuable. Believe me, this interview process would be like your first, like the interview जो आपका HR team के साथ होगा. So even if you don't get selected as a lead, I'm sure you'll learn something new out of this process. And Anushka, you want to add something? Yeah, so it will be a worth it experience, ठीक है, इंटरव्यू का तो. एंड फॉर दिस पर्सनालिटी टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आई वुड से कि कुछ प्रिपेयर करने की सेपरेट से जरूरत नहीं पड़ती है. आई तो डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग सेपरेटली फॉर दैट. मुझे तो पता ही नहीं था दैट दिस टेस्ट एग्जिस्ट. ओके, व्हेन द मेल केम आई वाज लाइक, मैं कॉल कर रही थी मेरे लीड को दैट व्हाट इज दिस, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. And he said that just give it. हमारे टाइम पे, उनके टाइम पे नहीं था वो, ठीक है, तो हमारे टाइम पे वो they just had interview फर्स्ट टाइम directly. इंटरव्यू हुआ था, तो इतना कुछ हार्ड नहीं रहता है. एंड दीज आर लाइक कि फर्स्ट ईयर के लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली. एंड रिगार्डिंग द पर्सनालिटी टेस्ट आई वुड से खुद की पर्सनालिटी के हिसाब से आंसर्स मत दो. एक लीडर की पर्सनालिटी कम्युनिटी को लेके कैसी होनी चाहिए उस Very हिसाब important. से. ओके, सो नहीं, Yeah. वैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए इफ यू आर लीडिंग द टीम. ओके, और वैसी पर्सनालिटी Yeah. नहीं है तो बनाओ, ठीक है, बिकॉज यू आर गोना लीड द Yes, very कम्युनिटी. true. Yeah. या And उसने बहुत ही सही पॉइंट कहा कि खुद की पर्सनालिटी, बिकॉज these are GDS, ये एक्सटर्नल बॉडी है, ये आपके दोस्त नहीं है कि ओके मुझे पता है ये बहुत मस्त बंदा है, मैं इसको लीड बना दूंगा. They are not like that. one more They are thing, they'll looking ask for an such ideal questions. leader in you. Yeah. Yeah, and they'll ask such questions कि तुम अपने दोस्तों को बनाओगे क्या टीम में, अपने दोस्तों को Yeah. लोगे कि इंटरव्यू प्रोसेस करोगे, ये सारी चीजें वो पूछेंगे. सो मन में भले ही तुम्हारे दोस्तों को लेना है, बट टेल देम दैट यू विल गो थ्रू अ इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है. यू विल बी नॉट बायस्ड, और यू विल बी नॉट लाइक कि मैं अपने दोस्तों को ही चूज करूंगा ओवर समवन. डोंट डू दैट, ठीक है. Yes, या yes. अहेड. Very true. Like, yeah. So, like, so the diagnostic test and this one is really simple. I think it's like a cakewalk. Like, but उसमें काफी लोग shortlist जो है वो निकल जाता है. Because they'll be like considering your application scores plus your diagnostic test scores. So, आपका हर एक जो process होगा ना, उसमें आपको scores मिलेंगे.
Okay, so make sure like all the processes which you're doing, you do it really well. First application, second diagnostic test, दोनों अच्छे से करना है. उन दोनों को मिला के they'll give you a score. Then after this इंटरव्यू के लिए थोड़े लोग शॉर्टलिस्ट होंगे. ऐसा नहीं होगा कि जिसने एप्लीकेशन भरा है, जिसने डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया, उसमें से सब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. सिर्फ थोड़े लोग शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर द इंटरव्यू. ओके, सो व्हेन द इंटरव्यू कम्स, व्हाट यू हैव टू डू, लाइक इंटरव्यू होता है कोई एडवोको का, लाइक उनका प्लेटफॉर्म होता है, तो एडवोको दे हायर है एचआर टीम. सो एचआर टीम में ऑनेस्टली बोलती हूँ उनका इतना कुछ टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं होता. आई एम श्योर वो आपसे लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाते इंटरव्यू में बैठ के कि आप लीड कोड की ये क्वेश्चन करो या आप कितने स्टार्स हो. दे डोंट केयर. आई एम श्योर कि उसमें से ऐसे इंटरव्यू एचआर टीम होगी जिनको खुद को भी लीड कोड के क्वेश्चन नहीं आते होंगे. सो दे आर एचआर टीम. तो एचआर की टीम क्या है, दे व्हाट दे चेक बेसिकली communication skills, confidence and attentiveness, technical skills to a limit. They'll ask you to explain your project. Situation based thinking, this is very important. इसको ना एकदम रेड मार्क करो, क्योंकि मेरा आई रिमेम्बर मेरा आधा इंटरव्यू ना सिचुएशन बेस्ड थिंकिंग में गया था. They asked me they so many create situation based thinking. situations and they say कि क्या करोगे इस situation में तुम, they'll do that. Exactly. We have some beautiful examples here. Okay, like let's take a look at a few examples. So obviously हर एक क्वेश्चन आप कंपनीज में भी जाते हो, कंपनीज के इंटरव्यूज में भी, प्लीज गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. ये क्वेश्चन आपको हर जगह आप रट लो, इसका आंसर के पेपर पे लिख कर रट लो कि ये मुझे बोलना है अपने बारे में. दिस इज वन थिंग. एंड यस, so these are some things: your name, where you are from, your college course. Okay, focus on situation, task, action and result. Applications and contributions के बारे में जब बताते हो, so this is the star method. Even during your company interviews या फिर आप कोई internship, next years आपके internships होंगे. So please, whenever you are answering, whenever you have this interview, please focus on situation, task, action and result. Okay, so these are the things. Situation मतलब situation क्या था? For example, I was reading about it and it's a very interesting thing. You know, whenever you're telling about your applications and contributions, आपको कैसे उसको structure करना है and the ideal answer वो क्या दिखता है. So like even during my internship, I was working on one AI model जो ऐसे answers को classify करता है. Okay, and we were given some similar parameters. So it's a very interesting thing. जो मैं answers पढ़ रही थी ना, उसमें ये सारे नहीं थे and it was making a very bad impression. So what is situation? Situation मतलब आपके पास में जो situation हुआ था और task क्या था, आप करना क्या था. Okay, that is task. Action, आपने क्या किया. And result, what was the result? Okay, like let me give you a very good example. Suppose I had to conduct an event on web development. That was the situation. Task क्या था कि situation था कि it was like before exams. Okay, it was just clashing with my insems and I had to conduct this web development event situation. Task क्या था कि I had to conduct this event. Action, मैंने क्या किया? Like I adjusted the dates, maybe I pushed the event a bit after insem. Okay, result, it increased the footfall. Many more students came and they attended the this thing. So they are looking for these parameters in your answer. These are some suggestions. Okay, and So with your this motivation star to apply. technique, Yeah. so this star technique is really very important when you are filling the application also. Like वो जो पहले 3 questions थे, you can put this technique in that also. अभी for example तुम्हें अपनी leadership के जो skills है, ठीक है, वो या फिर जो leadership के तुम्हारे experience है, when you are putting it, just don't put कि मैंने ये lead किया था. Share your experience. So when you're sharing your experience, tell की situation क्या थी, ठीक है, तुमने क्या क्या event बनाया था, फिर वो event में major task जो तुमने handle किया, फिर उसमें जो डिफिकल्टीज आई एंड हाउ यू ओवरकम इट, सो दैट विल कम इनटू द एक्शन, एंड फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ. सो बेटर पुट दिस, ठीक है, इससे एक बड़ा अच्छा, ये खुद मैंने किया था, मेरे लीड ने मुझे बताया था दैट प्लीज यूज दिस स्टार टेक्निक नॉट ओनली हियर इन GDSC. whenever you are writing about anything, any situation, or you're sharing your experience, just do it with these 5 pointers or 4 pointers. Okay, this is a very important thing, just mark it. Yes. Okay. So that's a very good technique जो आपको याद रखना है. And how, okay, so these are some questions which they ask. Okay, so basically मेरा आधा इंटरव्यू मैं बताती हूँ, like मेरा पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस. मेरा आधा इंटरव्यू गया इसमें सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस में. दे आर आस्किंग में सिचुएशंस कि तुम ये होगा, तुम कैसे रिएक्ट करोगी. और फिर आधा इंटरव्यू गया टेक्निकल, लाइक दे आस्क मी सम प्रोजेक्ट्स कि तुम्हारा टेक स्टैक क्या है एंड व्हाट डिड यू इम्प्लीमेंट इन द प्रोजेक्ट, व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, कि आपके प्रोजेक्ट ने क्या किया. ओके, सो बेसिकली उस टाइम पे था. सो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के एग्जांपल्स दे देता है. How will you approach leading a community that is existing and already has a team and a system set up? They ask you such questions, okay, and they'll check your situational alertness कि आप क्या करोगे. Okay, this is a very interesting question.
And it is something which you will face when you will become a GDSE lead. How will you approach leading a community that is existing and already has a team and a system set up? Okay, ऐसा हो सकता है. Like in many GDSEs which I've seen, they already have this community, they already have this set of protocols कि हमें इसे बदलना नहीं है. And maybe you might not like those protocols, and since you're a lead, you get 100% right कि मैं अपने हिसाब से club lead कर सकूं या अपने हिसाब से उनको change कर सकूं. So they ask you, and please like शांत मत बैठना. इवन इन केस यू आर लाइक कि आपको आंसर नहीं आ रहा, आपको कुछ सूझ नहीं रहा कि यार मैं क्या करूं, प्लीज शांत मत बैठना. इट इज पुटिंग अ बैड इंप्रेशन. ओके, अगर आपको नहीं आता है तो मैं क्या करती हूँ मैं बताती हूँ. इन केस कोई मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है एंड मेरे को नहीं आ रहा है कि लाइक पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोलूं, ओके जस्ट स्टार्ट कि लाइक जस्ट स्टार्ट डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन कि आई फेस्ड अ सिचुएशन, या फिर ऐसा था मेरे कॉलेज में, या फिर ओके दिस इज द सिचुएशन बेसिकली. एंड इन केस यू डोंट गेट द क्वेश्चन, समटाइम्स क्या होता है कि उनका ऑडियो क्लियर नहीं होता इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, and you're not getting the question, you it is very like very well you can ask them. It's totally okay that you ask them to repeat the question until and unless you don't get the question. Okay, the question समझना बहुत important है. Okay, and you have this, just describe the situation and something might click to you कि आप क्या करोगे, and be honest कि ऐसे existing community and already has a team and system set up. Okay, so maybe like a very good answer for this is ये question मैं पहली बार पढ़ रही हूँ and मुझे like नहीं आ रहा क्या करना. Maybe you can say something like okay, I faced this situation before as well, like even in your school maybe you had some leadership experience कि ऐसे existing system था and team था and आपने कैसे किया. So you will be like okay, whenever I come I'll select a core team, and firstly whenever I describe a new policy or technique, I'll firstly tell them ki why is it beneficial. I'll make sure everyone comes on board with me. I won't go against anyone and like tell them ki just because I like it you do it. I'll describe it to them ki why is it beneficial for me, how will it benefit the community, and I'll make sure we are on the same page with terms with this. Okay, and they like such words कि आप ना पूरी टीम को लेके चल रहे हो, because it shows that you are a team player, you are not a leader, you are not a monarch. Okay, आप कोई king नहीं है जो बस orders देता है. They want team players, they don't want someone कि जो बस ऐसे orders देते रहे. So they like such terms because that will fit in the criteria of an ideal leader for them. So you'll have to be like आपको ऐसे answers देने हैं. Okay, so yeah, Anushka, you want to add something? या एंड अगर तुम्हें सूझ नहीं रहा है कुछ ना, या फिर तुम्हें आ नहीं रहा है, सो दीज आर नॉट द टेक्निकल क्वेश्चंस जो तुम्हें आ नहीं रहे या फिर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे. सो दीज विल बी, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे वो. ये सारे सिचुएशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या फिर लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे. सो इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, या फिर तुम्हें टाइम चाहिए, या फिर अभी सूझ नहीं रहा है, जस्ट टेल देम दैट जस्ट गिव मी सम टाइम, I just think about it and tell you, ठीक है. बट उसको सोच समझ के आंसर करो, बिकॉज दे जज यू ऑन दोज क्वेश्चंस. ओके, वो जज कर लेते हैं तुमको उसी के बेसिस पे. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि तुम वहां पे जाके खुद नहीं सिखाने वाले हो हमेशा. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव सीन वर्षा एंड मी टीचिंग? नो, इट्स लाइक वेरी फ्यू. हमारे पास लीड्स है हमारे सेपरेट, जो स्पेशलाइजेशन उनकी हुई है एंड दे आर टीचिंग, या फिर हम बाहर से स्पीकर मंगा लेते हैं. वी आर नॉट द वंस हु आर टीचिंग, वी आर हियर कि हम कम्युनिटी को साथ में रखें, हम वो लीड करें, हम वो सारा ऑर्गेनाइज करें. ठीक है, वो स्किल्स उनको दिखाना तुम्हारे पास है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, सो जस्ट टेक योर टाइम, थिंक एंड टेल. नो प्रॉब्लम अगर तुमको आता नहीं है तो जस्ट टेल देम, जस्ट गिव मी सम टाइम, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल कम बैक टू यू, आई विल जस्ट बी देयर. ओके. Yes. Okay. So listen actively and patiently, ask clarifying questions, quantify your achievements whenever possible. Okay, make sure you highlight your achievements, even if you have written it in the this thing जो first round था. ऐसे मत सोचने कि इसको सब पता होगा. Okay, even if they know, you know what happens is जब इंटरव्यू लेते हैं ना, उनकी लैपटॉप पे एक स्क्रीन खुला रहता है जिसमें अपने सारे जो रिस्पॉन्सेस है ना वो उनको दिखता है. Okay, you have written this, okay, you have written that, and based on that they might ask you the questions. Okay, take it as कि आप कोई कंपनी में जा रहे हो, you are going to be like going for a job in a company, and उसमें क्या है कि वो HR क्या करता है, वो आपका रेज्यूमे देखता है. ओके, they'll scan through your resume and see कि आपने क्या क्या लिखा है. So make sure कि like आप ना रेज्यूमे में कुछ ब्लफ ना करो, एंड आप जो रेज्यूमे में even if you are bluffing, please do it confidently कि आपको उसके बारे में पता हो अच्छे से, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस आते हैं 100% एंड वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. So quantify your achievements wherever possible. Okay, they don't know कि आपने like क्या achieve किया unless and until you tell them. So tell them, use numbers and data to demonstrate the value you brought to previous roles.
इट्स वेरी अट्रैक्टिव कि अगर आप बोलो कि ये नंबर्स यूज करो कि लाइक जो इवेंट में था there were an expected number of this maybe 400 people थे, then I somehow we did very good marketing and we got around 738 people. So this shows your confidence and this shows कि आपको like you care about the stats and everything. So it's a very attractive thing which you do. Okay. So these are some of the questions. They asked me this question. Give me an example of a time when you successfully organized an event. What are the challenges that you faced and how did you overcome these? Okay, so these are some of the things. Even if you haven't organized an event, maybe you must have participated somewhere or maybe, like don't underestimate anything. आपको लग रहा है कि ओके मैंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया बट मैंने स्कूल में कुछ तो किया था या मे बी आप ना कुछ भी ऐसे एग्जांपल दे सकते हो इवन इन स्कूल और इवन इन योर सोसाइटी और समथिंग मे बी ऑर्गेनाइज्ड अ स्मॉल इवेंट जिसमें बस 10-15 लोग थे ओके और आपको कोई चैलेंज आ गया होगा सो प्लीज बी कॉन्फिडेंट इवन इफ यू आर सेइंग समथिंग रियली स्मॉल जस्ट टेल कि ऐसा ऐसा था how you did it and how you like overcame those challenges because it's very important. What they do is वो ना आपका जो confidence है वो देखता है. They see your situational presence कि आपने कैसे किया. Okay, so these are some things. Yeah, so like everything आप जो भी देख रहे हो ना suggestions, even we'll share these PPTs with you after this. So these are the suggestions जो हर एक इसमें common है. Be honest and genuine. Be prepared to summarize. Describe what you bring to the position. Describe your learning from the experience. Okay, so make sure कि आप जो answers दे रहे हो ना, especially please like speak in English. English is compulsory. They are looking for people. आप में से काफी सारे लोग मैंने देखे होंगे. Like in COE, since I was studying from first year, आप में से काफी लोग होंगे जिनको like maybe थोड़ी इंग्लिश में बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी या maybe you might be like a bit reluctant. Maybe आपका स्कूलिंग कोई और मीडियम में हुआ. Doesn't matter at all. Okay. आपको क्या करना है आपको बेसिकली इंग्लिश में ही बोलना बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश सो डोंट वरी इवन इफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट दैट गुड यू स्टिल हैव सम टाइम टू इम्प्रूव एंड इवन इफ आप एप्लीकेशन तक इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो टिल द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश because doesn't matter try practicing try speaking with your friends in English try speaking with your maybe like classmates in English or just try to communicate in English. I know कि ऐसे आपका crowd आसपास का होगा जो सिर्फ हिंदी में या मराठी में बात करता है but please believe me आप जो corporate world में जाओगे या फिर like you are still in second year but after when you face placements या फिर when you go into corporate world you will have to be like very confident in English. So they look for English. Okay, so even if you are not confident now, just try your best to like express yourself as much as possible in English. So this is one of the tips which I wanted to give. Like ऐसे questions ही आता है. If an internship or conflict comes up, what would you do to ensure the community is supported? Okay, so these are like the questions. Yes. आप देख सकते हो कि like suggestion सारे same है. Sure, you're proactive. Okay, so I wanted to add something. If an internship or conflict comes up, what would you do to ensure the community is supported? Yeah, please don't be very honest and say कि internship में मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं वापस जाऊंगा GDSC में मुझे पैसे नहीं मिलते. Okay, don't be that honest. Okay, they'll obviously they won't select you for being such honest person. So if an internship, so आप ना जो भी answer दे रहे हो, like even if you're applying for a job or even if you're applying somewhere, like why will a person hire you? The person will hire you if you are like putting the priority of the Dedicated. community first. Yeah. Okay. Dedicated, yeah. Yeah. So if you're putting the community first and if you're dedicated to the community, just say कि even if internship is coming, मैं ना balance करूंगा. I'll give time to GDSC because I am very passionate and motivated to support the community. That's why I'm here. आप ना अपना इंटरेस्ट दिखाओ कि आई एम हियर लाइक इंटर्नशिप भी आएगा तो फिर इंटर्नशिप को मैं थोड़ा लाइक टाइम बैलेंस एंड डोंट लाई ओके कि मैं इंटर्नशिप गया भाड़ में मैं GDSC लीड ही बनूंगा बिकॉज Will not believe it. yeah they very You well have to know say, but internship we'll balance it. yeah this is the ideal answer which they are looking for we'll balance it we'll make sure कि internship भी हमारा हो रहा है side by side we'll give time to GDSC as well because that's what you have to do in third year आपकी internship भी होंगी third year में you'll have to give time to the community like even if you might say कि मैं थोड़ा hybrid ले लूंगा I'll negotiate for a hybrid one and just to make sure I'll give time to my community so these are some of the answers which they are looking for don't lie and say कि मैं सिर्फ GDSC को ही टाइम दूंगा इंटर्नशिप वगैरह सब चला गया मैं दिन रात बस GDSC का ही करूंगा don't do that
बी ऑनेस्ट, लाइक ऑनेस्टी इज समथिंग विच पीपल अप्रिशिएट एंड दे आर एचआर, ठीक है, वो ऐसे कंपनीज के कैंडिडेट्स को जज करते हैं, दे जज सो मेनी पीपल। आप ना उनके 100th कैंडिडेट हो सकते हो, आपसे पहले उन्होंने 100 कैंडिडेट्स को सुना होगा, ठीक है, सो दे नो व्हाट एन आइडियल आंसर इज, दे नो कि वो आप कब झूठ बोल रहे हो या फिर कब ये कर रहे हो। सो प्लीज डोंट lie, बी ऑनेस्ट एंड बी सपोर्टिव, कि आप कम्युनिटी को सपोर्ट करोगे। For my ओके, interview तो honesty was the key, I would say. मेरे लिए या मेरा इंटरव्यू चल रहा था, in the middle of the interview she asked me like what is your क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, what is your best quality, and within 0.1 second I was like honesty, and she was like done, okay. I would say वो point था इंटरव्यू का where I really achieved it, okay. मतलब वो हाँ, अभी भी दिमाग में मेरे रहता है, that is important. या एंड मेरा इंटरव्यू तो आई रिमेम्बर देयर वाज सम भैया, ओके, लाइक एक बंदा था, एंड मेरा इंटरव्यू थोड़ा दोपहर में था, उसके पहले उसने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, एंड आई स्टिल रिमेम्बर ही वाज लाइक, मे बी ही वाज अ बिट टायर्ड, सो बट स्टिल ही वाज लिसनिंग वेरी एक्टिवली, and last me he said something, he said like it was a very good and interesting conversation which happened on this day, and he gave me a smile, and literally that made my day. I was like ki, even if I'm not selected as the lead, at least I had a good interview, like my Yeah, first official exactly. interview experience was good. Yeah, That is the thing, yeah. बस और कुछ नहीं चाहिए। And at the end of the day, what we see is कि हमने इतना जो इंटरव्यू प्रोसेस किया, एटलीस्ट वी आर गॉन थ्रू कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, एंड दैट टू वी आर Exactly. डूइंग इट विद गूगल, द मोस्ट वांटेड Yeah. कंपनी, व्हाट एल्स इज नीडेड। एंड आफ्टर दैट मेरा जो था ना इंटरव्यू, तो मुझे मेरे एक पीयर ने बताया था, ठीक है, कि whenever the interviewer asks you at the end of the interview, do you have any questions, never say no, ठीक है, never say no, ask Yeah, something to yeah. them. And Ask the something. very Exactly. important question you can ask is how was the interview, ठीक है, मैंने इंटरव्यू कैसे दिया, अच्छा दिया हाँ, क्या। सो दिस इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क, अगर कुछ और है नहीं तुम्हारे पास पूछने के लिए, क्योंकि ये तुम yeah, हमेशा yeah, पूछ सकते हो, एंड दिस इज अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ देम yeah. कि Definitely. जैसे ये बंदा या बंदी इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, सो दैट इज समथिंग कि तुम लर्निंग एज अ स्टूडेंट हो और तुम लर्न करने के लिए कर रहे हो, ये सारी चीजें ऐसे रिफ्लेक्ट करता है वो। सो शी सेड लाइक, वो जो इंटरव्यू थी, सो शी सेड कि आई कांट से लाइक दिस राइट नाउ, so I am also learning, I am also new here, so I can't just review it, I can't just give my opinions, but it was good. So it is like Yeah, that. yeah, yeah. She was so generous, she was like, I can't really judge you, I'm really sorry. Okay. Yeah. That's great. That's great. Really good to hear. And yeah, so the next question, which this was, okay, tell me about a project that involved coding. Walk me through your project and why, what products you used. So project, this is a very important question. अगर ना मैं कोई interviewer होंगी and if I have a mark sheet, I'll give 15 points to the situation and I'll give equal weightage to the project because we need someone who's technical. We don't need someone who's like a situation because GDSC is a technical club and you should have some technical knowledge as well. So your project can be anything. So I remember I showed some 3-4 projects and a major blunder happened. Okay, this is very interesting thing. So मेरा Flutter का app था. And that app, it was actually a good app because वो hackathon में it got an all India rank of, it was in the top 10 this thing. So it was like a very good app जो हमने बनाया था as a team. But मैं जब वो app run कर रही थी, so it was a donation app. The project was help out and वो all मेरे LinkedIn पे भी है. You can check it on my LinkedIn. You can check it on my GitHub as well. So the blunder which happened was, लाइक आप जब भी कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं या फ्लटर डेवलपमेंट करते हैं, आपको ये पता होगा आप जब एमुलेटर चलाते हो ना, ऐसे बहुत बार एरर्स आते हैं, वो चलता नहीं है कभी कभार, या फिर कोड बेस थोड़ा ये हो गया वो हो गया। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आपके साथ हो सकता है कि आप जब ऐप चला रहे हो, आपका लाइक ऐप चल नहीं रहा है, या फिर लाइक इवन ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू हो सकता है आपका कैमरा नहीं चल रहा है। प्लीज डोंट पैनिक। सबसे पहले तो इस सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है। मेरा आई रिमेम्बर मेरा ना कोड बेस नहीं चल रहा था, मतलब मैं एमुलेटर पे चलाने का ट्राई कर रही थी ऑन द स्पॉट, मतलब इंटरव्यू के पहले तक चल रहा था, इंटरव्यू के टाइम पे इट स्टॉप वर्किंग। ओके, आई वाज लाइक डैम इट, मेरा लक बहुत खराब है, इंटरव्यू के टाइम में ऐप नहीं चल रहा है। सो इट वाज लाइक वो इंटरव्यूअर देख रहा है कि ओके नहीं चल रहा, सो यू नो a point came when the interviewer said it's okay, don't run it, we'll proceed. मतलब आप बस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ आपने क्या क्या यूज किया, एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये चला नहीं तो फिर क्या होगा, लाइक ही वोंट बी एबल टू सी माय प्रोजेक्ट। सो व्हाट हैपेंड वाज आई वाज लाइक काम डाउन। मैंने क्या किया, वन थिंग व्हिच आई डिड वाज, फिर मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया इंटरव्यू के बीच में। आई जॉइंड विद मोबाइल, आई स्क्रीन शेयर्ड इट ऑन माय मोबाइल, लकीली इट वाज ऑन माय गिटहब, एंड मेरे पास एपीके पुश था मेरे मोबाइल में।
I screenshot my mobile and I walked him through the whole app. I explained the concept, I explained the motivation, I explained everything. कि ये मेरा app है, ये मेरे लिए बहुत special है. I'm planning to scale it. Plus, I showed him the GitHub as well. And believe me, अगर वो नहीं होता ना, maybe I won't be selected as the lead because That I was think he was impressive very impressed with the actually. project. Yeah, yeah. Yeah. No, no, not with the project, with with that enthusiasm to show with your mobile. That is Yeah, more. yeah. Yeah. Exactly. We're like, oh my He, God, he she's was very like, enthusiastic. yeah, he was like कि रहने दो मैं आगे बढ़ता हूँ. I'm like नहीं, मैं Yeah. मोबाइल से दिखा के रखूंगी. I I was like, have done please it. wait, I'll I'm show showing you. it. Yeah. And he was very happy with the project. At the end, he was like, oh my God, that is a very sweet project. And when I explained the motivation, my idea, कि मुझे idea कैसे आया, he was very impressed and he was like, that's very good. Like the story behind it, he liked it a lot. Okay. So in case it has an interesting story also, but मैं अभी बताने जाऊंगी तो मीट बहुत लंबी चलेगी. So in case आपको कभी भी वो story सुनना है, just like search me, कभी find me and I'll tell you the story happily. It's a very interesting story about the app and all. Okay, so that was the thing. So please never give up and don't panic in such situations. Even if आपका code base नहीं चल रहा, आपका APK नहीं चल रहा, there's always some other this thing. आप उनको बोल सकते हो कि like at the end he asked me कि आप अपने APK का link भी मुझे दे दो, आपका GitHub का link, repo का link भी मुझे दे दो. He asked me everything because he liked it and he wanted some evidence with him. So he was like कि just give me the link. So please keep your links handy. Okay, आपका LinkedIn, आपके project links handy रखो. हो सकता है at the end of the interview they might ask for your links. Okay, so keep your links handy somewhere and be sure you send it to them in the chat box at the end of it. Because उन्होंने मुझे पूछा था, plus they told me कि like ये जो project या फिर जो भी है, please be sure to explain it well and don't lie. If you are in a hackathon या आपका कोई group project है, ये मत बोलना कि अगर आपने backend बना तो आपने front end बना, because वो उस पे questions पूछेंगे. Just make sure you represent. Okay, मैंने backend बनाया, ठीक है, backend के बारे में अच्छे से बताओ, आपने क्या सीखा है. Because they want your teamwork, they want how much knowledge you gain from the project. And you should walk the person through the project. अगर आपने कहीं से उठाया भी है like काफी सारा code, तो ओके लाइक कोई बात नहीं, ऐसे उठाना तो नहीं चाहिए, बट इन केस इन द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन यू पिक्ड इट अप, मेक श्योर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट रिप्रेजेंटेड एंड आपको प्रोजेक्ट का एकदम A to Z सब पता होना चाहिए, बिकॉज दे कैन आस्क यू एनीथिंग. एंड मेक श्योर यू लाइक वॉक देम थ्रू द होल प्रोजेक्ट एंड टेल देम उनके जो भी डाउट्स है, बिकॉज वो प्रोजेक्ट के अंदर में से क्वेश्चन पूछ सकता है. मुझे पूछा था फ्लटर के अंदर में से क्वेश्चन कि लाइक आपने ये क्यों किया, एंड वो HR है. लाइक बिलीव मी, अगर आपका किस्मत बहुत ही खराब हो तो आपको एक टेक्निकल HR मिलेगा जिसको सब पता है. बट अगर आपकी किस्मत लाइक ठीक है या फिर अच्छी है, so he won't have that much of a technical knowledge. So even if you are explaining confidently आपका जो project, they should get the idea कि you have some knowledge about the project which you made. It's not something which you picked up from somewhere, from Google or from any YouTube video. You have some basic knowledge. Please make sure कि आपको पता होना चाहिए. Okay. One more thing regarding This the is projects. अगर projects बनाए नहीं है अभी तक, ठीक है, and तुम्हें technical experience में डालना है, ठीक है. For example, अभी मेरे को एक chat में question है, please share the technical experiences you mention in your application, ठीक है. अगर किसी के पास नहीं है, ठीक है, projects नहीं बने हैं, and you have to put that answer, ठीक है, तो अभी इंटरव्यू और इसमें बहुत टाइम है, तब तक तुम एक दो प्रोजेक्ट्स इजीली बना सकते हो गिटहब से. गिटहब से रेफरेंस ले लो, ठीक है. मैंने किया था, मैंने खुद ने एक प्रोजेक्ट किया था, ठीक है. आई हैड वन प्रोजेक्ट एंड आई मेड वन प्रोजेक्ट, ठीक है. तो मैंने क्या किया था, मैंने AIML का डाला था, प्लस मैंने फ्लटर का डाला था. फ्लटर का आई रियली डोंट हैव एन आइडिया फ्लटर क्या होता है, ठीक है. एंड एट दैट टाइम मैंने एप्लीकेशन में लिख दिया था कि मैंने फ्लटर पे बनाया है या फिर ऑनगोइंग है, ठीक है. एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू वाला प्रोसेस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था वो चीज, ठीक है. आई वाज मेकिंग अ बिटवाइज कैलकुलेटर एंड वो कंप्लीट नहीं हुआ था वो चीज. सो आई जस्ट टेल देम ऑनेस्टली कि आई हैव मेड दिस AI वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड आई शोड देम कि ये बन चुका है मेरा एंड आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट. ये अभी तक बना नहीं है बट आई एम लर्निंग इट एंड आई एम डूइंग इट, ठीक है. जस्ट बी ऑनेस्ट टू व्हाटएवर द थिंग इज, ठीक है. ऐसे मत करना कि बनाए अभी खुल नहीं रहा है, अभी ये नहीं हो रहा है मैम, अभी ये नहीं हो रहा है सर, डोंट डू दैट, ठीक है. Yeah. वो गलत इंप्रेशन जाता है. या Yes, very true. And these are some suggestions. Give a brief about the project and idea behind. Every project has a very interesting story. Okay, like there are so many people around you जिनके पास बहुत सारे problems होंगे, उसको solve करने के लिए आपने project बनाया. So अगर आपके पास वो interesting story वाली project होगी ना, please describe the story very well. I had this idea. ये होता था. And मेरा project वैसा ही था. I got this idea from somewhere and I made it. Okay, so I told them the backstory as well कि ऐसा ऐसा backstory था. And I made this project. And that was the thing, they liked it a lot.
एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी यू यूज्ड. ओके, फ्लटर, अगर आपने फ्लटर फ्रंट एंड के लिए यूज किया, फायरबेस बैक एंड के लिए, आपने कोई वेब में बनाया जिसमें आपने रिएक्ट में भी फ्रंट एंड यूज किया, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट यूज किया, बैक एंड में मोंगोडीबी यूज किया, इट्स टोटली फाइन. जस्ट टेल देम, रिमेन पॉजिटिव एंड अवॉइड नेगेटिव कमेंट्स अबाउट पीपल अराउंड यू. या डोंट बैकबिच कि मेरा दोस्त था, उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, मुझे बहुत गुस्सा आया. Don't do exactly. that. वो ऐसे Yeah. लगेगा that you're going to work in a community and you're already like done with your teammates. Just don't do that. या आप चाहिए तो आप अपने दोस्तों को ऐसे बता सकते हो, इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, सारा प्रोजेक्ट मैंने ही बनाया, बट प्लीज एचआर टीम के सामने ये सब मत बोलना, ठीक है? इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन ऑफ अ गुड लीडर. अच्छा टॉक अबाउट टीम बताना, वर्क. वो बताना तब, ये तब बता सकते हो तुम कि तब तुम्हारे पास वैलिड आंसर हो कि मैंने उसको ओवरकम कैसे किया अच्छे से, ठीक है? हाउ आई हैंडल या देन यू हैव टू यूज दैट मेथड, ठीक है? वो वाला मेथड यूज करना है फिर स्टार वाला अच्छे से एकदम. yes. Yeah. And talk about teamwork because it's very important you talk about teamwork. Even if अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, just tell कि मैंने ये फ्रंट एंड बनाया, उसने बैक एंड बनाया, we integrated it, like किसी ने बीच में API इंटीग्रेशन किया. Just tell कि किसने कौन कौन सा पार्ट किया. And tell कि मेरे 4 दोस्त थे, फिर हम चारों ने मिलकर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना. They have this impression कि you can work in a team and it puts a really positive impression. Okay, and your experience with learning. Okay, even if you made a project for the first time, हो सकता है कि इतना अच्छा नहीं बना, there were a lot of errors. Okay, just make sure you end it with a learning कि आपने उसमें से सीखा क्या, because it's a very important thing that you learn something out of it. And how your project helped the community around you. It puts a very good impression on them. If you just tell them कि your learning, your teamwork, and your like tech stack, everything, तो फिर ना वो check करेंगे कि your IQ is good, your EQ is good as well. Because that's what makes a good leader, I believe. Because even during my tenure, there were so many situations जिसमें I was under stress and I had to like take decisions कि like it was more of a like EQ भी होना चाहिए कि आपने decisions कैसे लिए. Because to run a club, you need everything. You need your technical skills, you need your IQ, you need your emotional quotient, you need everything, and they'll be checking it. Okay, कि आप कैसे कर सकते हो. Reiterating few important tips. Okay, be sure to ask any final questions about the position. Like Anushka told, there are no right or wrong answers. Give your best bet with full confidence. Okay, बस अपना बेस्ट दे के आओ, ज्यादा सोचो मत, जस्ट भगवान भरोसे छोड़ो और अपना बेस्ट दे के आ जाओ बस. Bring right structure to your story, and lastly, be honest. Like she told, be honest. Don't lie. Okay, yeah. Yes. So this is, I don't think it's for you. Do mock interviews for friends, do a revision sessions. Okay, assignments. In case you're interested in assignments, इतने कुछ जरूरत नहीं है, but we'll be sharing some assignments with you. Like we got it in the mail कि कोई interested है तो you can do it. Build an answer for why do you want to apply. Okay. Yes. So yeah, I think content is over. So इतना जो हमने रामायण बोल दिया. Anyone has any questions, they can ask in the chat box. I think या many फिर people did ask. Yes. या Still फिर it's उनको empty. क्लियर कर देना, माइक का परमिशन दे दो. Yeah. Let them speak. Yeah, mic permission is there. You can ask the questions. अब कुछ भी question हो, just feel free to ask. अगर आपको लग रहा है हमने बोर भी किया तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो. Yeah. And yeah, one more thing. I was like not finding the exact chapter. I figured out the reason why. My screen is visible, right? Yeah, Yes. I was figuring it out on my phone. Yeah, finally I got it. Okay, हमारा ना देखो इतना confusion होता है. हमारा it's like हाँ, DY Patil College of Engineering, finally. It is D.Y. Okay. इसके लिए हमें नहीं बढ़ रहा था उतने टाइम से. Because it has 2 dots. So please make sure, I'll copy paste it in the chat box. So please make sure you put this D.Y. Patil College of Engineering. And DYP-IU, there were no dots, but इसमें dot है. अगर आप dot नहीं डालोगे ना, आपको नहीं मिलेगा. It's the like most confusing part is there's a DY Patil College of Engineering and Technology in Kolhapur as well. Please वो select मत करना. वो जो पहले वाला आ रहा था ना कोल्हापुर का था, तो कोल्हापुर में भी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वो मत करना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैं कम्युनिटीज पे भी डाल दूंगी. इट्स D.Y. Patil College of Engineering Pune India. दिस इज आवर चैप्टर नेम. डोंट सिलेक्ट एनी अदर चैप्टर. यस, ओके. सो थैंक गॉड इट्स देयर, वरना मुझे लगा था कि नहीं है. या सो दिस इज द थिंग. Okay, so now you can ask any questions. What? Thanks a lot. Okay, that's very sweet. Is it necessary to give all the social media link? Yes, it is, because अगर आप कोई field blank छोड़ते हो ना, you see some links are very important. Let's classify some things as very important.
Like you can classify GitHub as very important, you can classify LinkedIn as important, you can classify some things. ये थोड़े क्विक लैब्स वगैरह भी किए होंगे तो अच्छा है. Like if you have participated in cloud study jams, आपके क्विक लैब्स का भी अकाउंट बन गया होगा. Okay, so make sure कि आप वो सारे links डालो. Even if you don't have the account, just make sure कि you make an account and put it. It's a new account, it's totally fine. हो सकता है कि वो अंदर जाके चेक नहीं करता. बट लिंक्डइन ये सब ना, ये तो होने ही चाहिए जो लाइक क्योंकि इट गिव्स एन आइडिया अबाउट यू हाउ एक्टिव यू आर इन कम्युनिटीज. एंड लिंक्डइन इज अ मस्ट. लिंक्डइन, गिटहब, ये 2-3 लिंक्स तो एकदम डालने ही अच्छे और मेंटेन करना है. यू हैव दिस टाइम स्पैन, जुलाई के एंड तक रिजल्ट आता है. यू हैव दिस इंटरव्यू का प्रोसेस मोस्टली मई में होता है. ओके, सो यू हैव कि इतना टाइम है तो इस आप आज से स्टार्ट कर दो. इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. लाइक इवन यू हर्ड अनुष्का सेइंग कि उसके पास भी नहीं थे बट शी स्टार्टेड इट एंड शी मेड इट. सो यू गेट इनफ अमाउंट ऑफ टाइम. तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको करना है. And yeah, one more Okay. thing regarding the social media links, ठीक है. Yeah. तुम डाल रहे हो, तुम्हारे अकाउंट नहीं है उस चीज के ऊपर, अकाउंट बनाओ, ठीक है, और डाल दो. अभी के लिए डाल दो, ठीक है. अभी टिल द इंटरव्यू प्रोसेस या फिर टिल जो भी है, ठीक है, उसको एक्टिव भी रखो, ठीक है. इफ यू आर अ पर्सन लाइक मी, मैंने लिटरली फॉर लाइक जो इंस्टाग्राम है वो मैंने जीडीएस की, अभी उसके ऊपर लिंक नहीं इंस्टाग्राम की, बट देयर वाज अ सेशन गोइंग ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है. जीडीएससी का मैम का आई गेस निकिता मैम का सेशन चल रहा था. सो माय लीड टोल्ड मी जस्ट जॉइन द सेशन अनुष्का, एंड फॉर दैट पर्पस मैंने इंस्टाग्राम खोला है. तो अभी अभी दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आई एम डिस्ट्रैक्टेड. बट ठीक है, Reels. इट्स ओके. मीडियम भी एक ऐसी चीज है जो इट्स रियली हेल्पफुल गाइस. मीडियम ना, अगर अकाउंट नहीं है बना लो, ठीक है. मैंने इस चीज के लिए जीडीएससी के अकाउंट लाइक जीडीएससी की प्रोसेस के लिए मैंने वो बनाया था. एंड आई पोस्टेड वन ब्लॉग ऑल्सो, ठीक है, उस टाइम के लिए कि मैं एक्टिव हूँ दिखाने के लिए. तो आई जस्ट पोस्टेड वन ब्लॉग. मैंने कहीं से उठाया था, ऑफ कोर्स आई कलेक्टेड मैनी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, फिर मैंने उसको रिफ्रेश किया, उसका हटाया कि उस पे ये ना लगे किसी और का. तो आई जस्ट डिड दो स्टेप्स और मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है. आफ्टर दैट वो मेरा एक्चुअली वो मेरा फायदा हुआ कैसे, क्योंकि मेरे कॉलेज में उस टाइम पे मुझे एक मीडियम पे अपलोड करना था, असाइनमेंट भी थी मेरी, तो वो बोथ वेज चल गया मेरा. ये भी हो गया, वो भी हो गया, तो मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव Yeah. भी हो गई एंड ये भी हो गया. आफ्टर दैट लिंक्डइन एक्टिव रखो, ठीक है. अगर कुछ पोस्ट नहीं किया अभी तक, जो सर्टिफिकेट्स है वो पोस्ट कर दो. मैंने आज आज जाके मैंने एक सर्टिफिकेट का डिलीट किया है पोस्ट, जो मैंने उस टाइम पे डाला था. लाइक दैट वाज लाइक इररेलेवेंट, बहुत ही मतलब बहुत ही बेसिक सा सर्टिफिकेट था, बस मैंने ऐसे ही एक्टिव हो इसलिए डाल दिया था. जस्ट डू दैट, Yeah, ठीक yeah. है. Yeah, yeah. And they are asking for links for a website and links for other websites. So what possible links? Okay. So basically सबसे पहले तो पहले पेज पे they ask for the college website. So आपके कॉलेज का वेबसाइट आपको डालना है. And other links. Okay. Links for other links में ना आप एक ऐसा लिंक डाल सकते हो जो ऊपर केस में नहीं है बट आपको रिप्रेजेंट करता है. It can be anything. If you have a public Instagram account जो आप काफी ज्यादा सोशलाइज करते हो, जो आपको रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है you are like very active on Instagram and you're doing something and they should see it. Okay, you believe कि आपका मे बी हो सकता है यूट्यूब का चैनल हो कोई, and you believe कि they should see it, कि they should see it and they shouldn't miss out on it. So please put that link. हो सकता है आपने कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई हो, आपका प्रोजेक्ट का कोई लिंक हो गया जो आपको लगता है कि आपकी गिटहब पे आपने नहीं डाला बट दिख नहीं रहा. सो प्लीज पुट दैट लिंक व्हिच दे शुड सी. अदरवाइज यू फील फ्री टू लीव इट ब्लैंक अगर आपका सब कुछ कवर हो गया. मैंने तो ब्लैंक छोड़ी थी उस फील्ड को, बिकॉज एट दैट टाइम या आई या डिडंट हैव एनी आई पुट माय वेबसाइट का पोर्टफोलियो लिंक. वेबसाइट लिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या मोस्ट प्रोबेबली वो वेबसाइट, तुमने जो वेबसाइट्स वगैरह बनाई ना, वो सारे लिंक्स डाल देते हैं वहां पे. नथिंग लाइक या स्पेशल. तो मैंने, मेरी तो उस टाइम पे कुछ नहीं था, तो आई जस्ट लेफ्ट इट. आई जस्ट या लेफ्ट. या नो प्रॉब्लम यस एट यस. Kshitij says Varsha doesn't give up until proven still. Very true. मैं कब से ढूंढ रही हूँ कि DYP क्यों नहीं है. Yeah, this is something very similar which happened during that day also. I was like, नहीं मुझे प्रोजेक्ट दिखाना है, आपको देख के ही जाना पड़ेगा, आपको जाने नहीं दोगे इंटरव्यू से. So I just joined with my phone and showed it. कि तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है. Like if you feel that there is something which you have to show it, please do, even during the interview or something, please show it कि वैसा है. That is the Okay. dedication. Okay, everyone, just take it from her. Okay, I am thinking And to he's add like, experience as core team member. Would you give honest recommendation on LinkedIn? Like what हाँ, on he's LinkedIn? asking me for क्या चाहिए तुमको? Exactly.
क्या बताऊं मैं, डाल दो भाई, हो टीम में, ठीक है, यू हैव हमने इवेंट्स डाले, इवेंट्स किए हैं, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस डाल दो कि हमने ये इवेंट्स किए थे, फिर उसमें थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया, सो आई हेल्प इन दैट, या फिर मैं स्पीकर भी बना था, यू वर स्पीकर राइट क्षितिज, पहले वाले सेशन में, वो डाल दो। उस टाइम पे अचानक से स्पीकर की पोजीशन, कोई और स्पीकर मिल नहीं रहा था, या फिर यू कैन पुट इन दिस वे कि एक स्पीकर ने बैकअप कर लिया, तो उसकी जगह पे मैंने एट दैट टाइम एज अ पीकोडी मेंबर आई टुक दैट इनिशिएटिव एंड मैंने वहां पे ये कर दिया, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। Yes. Is it necessary to have coding expertise or can it be? Ari, so it's a very like very good question. So basically हमने इसमें भी बोला था सेशन में. So it's not at all important कि आपका intermediate या advanced level का भी coding रहा है. Even if you have this basic knowledge या फिर थोड़ा सा basic to intermediate knowledge, you should know to represent it very well. Okay, कोई भी आपसे ऐसे lead code के question solve नहीं करवाएगा throughout the process. ऐसा कोई ये Microsoft का hiring नहीं चल रहा है कि या गूगल की भी हायरिंग नहीं चल रही है कि आपको डीएसए के खतरनाक क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली यू शुड उतना तो नो हमको योर भी नहीं आता है अभी। why basically you should know how to run this community, plus you should have such basic to intermediate knowledge of DSA. ठीक है, लाइक हो सकता है आपको जो एप्टी है ये सब होगा उसमें डीएसए के बेसिक क्वेश्चंस आ जाए, लाइक थोड़े आई थिंक आई हैड दिस एरेज का क्वेश्चन या फिर आई हैड सम बेसिक क्वेश्चंस, ओके, इवन इफ ड्यूरिंग इंटरव्यू दे माइट आस्क यू सम डीएसए के कॉन्सेप्ट्स, एंड बिलीव मी इतने एडवांस नहीं है, बहुत बेसिक थे। मुझे जो इंटरव्यूअर ने पूछे थे, ही आस्क्ड मी अबाउट सम लिंक लिस्ट का थिंग कि लिंक लिस्ट क्या है, एंड ही आस्क्ड मी सम बेसिक डीएसए कॉन्सेप्ट्स। सो आपको उतना तो पता होना चाहिए डीएसए के कॉन्सेप्ट्स क्या है, एंड यू शुड नो, एंड इट्स वेरी गुड कि अगर आप रिप्रेजेंट कर सको उन कॉन्सेप्ट्स को। एंड वो आपको कोई लिंक लिस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बोलेंगे इंटरव्यू में, दे आर जस्ट चेकिंग कि you should know what is your like experience in this DSA or something. So it's totally okay even if you're on intermediate, or please don't give up even if you're on basic. You should know to represent it well and keep your basics clear. आपका इंटरमीडिएट बहुत अच्छा है, बेसिक अच्छा नहीं है, सो इट डजेंट मैटर एट ऑल, इवन ड्यूरिंग कंपनी प्लेसमेंट्स, इवन ड्यूरिंग एनी क्लब इंटरव्यू, प्लीज कीप योर बेस क्लियर, क्योंकि बेस क्लियर रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। मुझे तो डीएसए के भी नहीं पूछे थे, मुझे उन्होंने प्रोजेक्ट बेस पूछे थे, लाइक मेरा ओके, फ्लटर पे कौन प्रोजेक्ट चल रहा था, तो दे जस्ट आस्क मी व्हाट, फ्लटर पे पूछा था एक दो क्वेश्चंस, वो भी बड़े बेसिक से थे, कुछ इतना था नहीं उसमें। या अच्छा, अरे हाँ, दे आस्क्ड मी डीएससी के कॉन्सेप्ट्स पूछे थे थोड़े से, वो बंदा उसने मुझे वही पूछा, लिंक लिस्ट का पूछा, एंड और याद नहीं आ रहा बिकॉज लाइक बहुत टाइम हो गया, बट ही आस्क्ड मी और इतना कुछ नहीं था, लाइक मैंने ऐसे ही दे हाँ, दिया आंसर। मुझे भी या मुझे तो इतना कुछ यार, टेक्निकल क्वेश्चन इतने पूछे नहीं उन्होंने, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं। लाइक अब मैं मुझे 5-10 मिनट में उन्होंने प्रोजेक्ट और टेक्निकल का पार्ट मेरा खत्म कर दिया, बाकी का हाँ मुझे बस ये बाकी की सारी चीजें पूछ रहे थे, लीडिंग ये वो हाँ, सारी चीजें। ओके, हाँ, मेरा इंटरव्यू ना, आई स्टिल रिमेम्बर इट वेंट फॉर 50 मिनट्स, ओके। सो 50 मिनट। लॉन्ग, मेरा इतना नहीं चला था, मेरा इट वाज लाइक हाँ, फ्रॉम 30 to 40 मिनट्स, 40 मिनट्स होगा मैक्सिमम, या एंड उसमें ओके, भी लास्ट के 10 मिनट अच्छा, मैंने प्रोजेक्ट पूछा, पहले 30 मिनट्स तो दे वर जस्ट या लाइक टॉकिंग टू मी, कम्युनिकेशन वाला, टॉकिंग, ओके, सिचुएशंस एंड ये सारी अच्छा, स्टफ, यस, ओके, गॉन सो स्मूथ एक्चुअली, मुझे लगा व्हाट डन, या इट वाज लाइक दैट। या इज इट नेसेसरी टू हैव अ सॉलिड टेक्निकल? आई थिंक वी ऑलरेडी आंसर्ड इट बेसिकली, ठीक है, तो या हमने जो भी बोला टेक्निकल के बारे में, इट्स नॉट इट, इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप योर बेस क्लियर होगा ना, आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट। What if we quickly finish the quick lab assignments? Would they ask about quick labs? Are so basically na no, but I have this like very important insight. क्या होता है कि ना, लाइक यू डिसाइड द ट्रैक फॉर योर इंटरव्यू, ऑलवेज रिमेंबर इट। अगर आपने अपनी इंटरव्यू में क्विक लैब्स के बारे में बताया कि मैंने क्लाउड स्टडी जैम किया है, मैंने ये किया, तभी वो पूछेंगे आपसे कि क्लाउड स्टडी जैम में अगर आपने बोला कि हम टीयर 1 में आए थे, मैंने इसमें ये किया है, सो दे विल आस्क यू कि क्लाउड स्टडी जैम में आपने क्या सीखा है, व्हाट वर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन क्लाउड स्टडी जैम। अगर आप मेंशन नहीं करोगे ना तो फिर नहीं पूछेंगे। यू डिसाइड द पाथ फॉर एन इंटरव्यू। अगर आपने स्टार्टिंग ही बोला कि मैंने फ्लटर का प्रोजेक्ट किया है, दे विल गो इन द फ्लटर डायरेक्शन। अगर आपने स्टार्टिंग में बोला मैंने क्विक लैब्स का किया, मैंने गूगल क्लाउड स्टडी जैम किया, तो दे विल गो इन द क्लाउड डायरेक्शन एंड द क्विक लैब डायरेक्शन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका इंटरव्यू कैसे चलता है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, लाइक नो वन कैन आंसर कि वो क्या पूछेंगे, बट यू नो यू हैव दिस आंसर कि आपने जो बोला है ना उस हिसाब से आपका इंटरव्यू का पाथवे चलेगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट। इसीलिए ना इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ना वो डिसाइड करके जाओ, कि तुम चूज करो कि तुम्हें कौन सा फ्लो चूज करना है, ठीक है, तुम क्या आंसर कर सकते हो उस हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन दो, उस हिसाब से वो तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में तुम जो भी बोलोगे ना उसके हिसाब से देन दे विल काउंट अ क्वेश्चन यू, कि अच्छा तो ये किया है तुमने, तो अच्छा इसके बारे में बताओ, तो इसमें अगेन यू विल तीसरा ही कोई चीज डाल दोगे, देन वो बोलेंगे अच्छा उसके बारे में भी बताओ, सो इट्स ऑल या ऑन यू।
कैसे जवाब दे रहे हो उसके ऊपर है पूरा। Yes, yes, very true. And website section on social media, like if I make a blog account and just add it, will it work? Hari, it will. Why not? Like I think they have this Medium का this thing as well. आप Medium पे डाल दो blog, why not? या फिर अगर आपको It's लग रहा है कि very आपको easy to go for median and without like paid भी नहीं है कुछ नहीं है, it's open so you yeah, can it's just very go good. for it, it's good. If Yeah, you still और feel ऊपर से आपको you are Medium using पसंद नहीं है, Google का technology so they'll be happy Google का technology use कर रहे हो, more important हो गया और क्या yeah. चाहिए। Yeah. Even if you don't like Medium, अगर आपको लगता है कि you need to make a separate blog account, please go ahead and please put it. It doesn't matter at all. Yeah. Which kind of topic which we should take for posting a blog on social media? Is it necessary that the topic for blog post will be on AI, Gemini, and that should be personal certification and others? अरे see, basically like I believe AI, Gemini, अगर आपको interest है तो आप उस पर लिख सकते हो, and it offers an edge because it's a Google technology, and they're looking for people who are basically promoting Google technologies and who have idea about Google technology. So if you're interested in it, you can put it on Google technology. फिर वो एक maybe advantage भी दे देगा कि like you have an idea about Google technology. But if your interest lies somewhere else, just it should be a good blog and they should know कि you are interested in some technical things. Okay. So put any technical thing which you like. गूगल जेमिनाई इज लाइक मतलब वो जो अभी बार्ड जेमिनाई वगैरह आया है दैट इज द हॉट टॉपिक्स, ठीक है। तो दैट इज वेरी गुड, अगर तुम पुट कर रहे हो उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स में ब्लॉग हो रहा है, डोंट गो फॉर द नेगेटिव वाला, ठीक है। नेगेटिव कमेंट्स ना डालना उसके ऊपर। Yeah. डाल भी रहे हो इफ यू आर पुटिंग इन क्रिटिक्स वे तो डाल दो, बट जस्ट बी श्योर कि तुम उनको ऑफेंसिव वर्ड्स में ना डालो, ठीक है, अच्छे से डालो। एंड द थिंग इज कि जितना तुम टेक्नोलॉजीज अपकमिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर डालोगे ना, दे नो दैट यू आर अपडेटेड अबाउट इट, ठीक है। और Yes, जितना वो very गूगल से true. रिलेटेड होगा उतना वो तुम्हारे प्रोसेस में हेल्प करेगा। Exactly. This is a very good point which she told. Ki they'll know ki you are interested in this upcoming technologies. Like there are some new AI models. We heard about Sora. We are hearing about so many AI models coming nowadays. So put it about it. You can like they should know ki you're an updated person. Can a person be lead for more than one tenure? You believe me, अगर ऐसा होता भी ना तो कोई बनना प्रेफर नहीं करेगा. But ठीक है. Like don't get हम me तो wrong. नहीं कर रहे हैं, we are तो It was an not amazing experience. It was an yeah, amazing it experience, was, don't get me wrong, but it's a very tiring experience when you become a lead for 1 year ना, क्या होता है कि like आप इतना कुछ experience कर लेते हो ना, आपको लगता है it's enough, इस लाइफ हाँ टाइम के वही लिए एक चीज lead का वापस से experience enough एक्सपीरियंस है. नहीं करनी होती है। हाँ, वही चीज right, में लाइक इट्स लाइक कि सेम चीज क्या करेंगे हम, वापस से वही करेंगे, वापस से क्लाउड जाम करेंगे, वापस से यही yeah. करेंगे। You have done it, now you can do it. Even me It's and a good Anushka, thing. we were discussing the other day कि अगर एक बार से ज्यादा बनना है तो बनेंगे क्या? We both were like नहीं, एक बार का बस है. यही ना, लाइफ टाइम के लिए वो एक बार बढ़ लीड गया बनना बस हो हमारा। गया. And it's not even allowed. To answer your question, it's not even allowed. You can only be a GDSC lead once. And believe me, that once is enough. That once is more than enough because you are experiencing so many things. आप lead बन जाओगे आपको पता चलेगा. Like it's not that easy. It's a very memorable experience. At the same time, it can be very taxing at times. I have some of my dear core team members in this meet, and they might know कि हमने GDSC में like क्या क्या किया है. Like we had a lot of fun. बट एट द सेम टाइम देयर वर सिचुएशंस जो लाइक काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल थे, काफी सारे क्लैशेस मतलब थे कि मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट के साथ क्लैश हो रहा है एंड वी हैड दिस वेन्यू के इश्यूज. तो बहुत कुछ होता है एंड एट द सेम टाइम यू हैव योर एकेडमिक साइड बाय साइड. आपके एकेडमिक्स होंगे, इंटर्नशिप होगा, आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे. सो हो सकता है कि लाइक बहुत कुछ क्लैश हो जाए. सो एट द एंड ऑफ इट ना यू विल बी लाइक अ बेटर पर्सन. The person who was there before becoming a GDSC lead and the person who is there after becoming a GDSC lead, they are two different people. Because it lot of actually difference, like, lot of difference. yeah. It actually like molds you in such a way that you are like ready to face a lot of challenges. Because आपने इतना सारा challenges आपके tenure में face किया है ना कि आप आगे जाके भी डरोगे नहीं कभी. You'll be ready कि नहीं मैं face कर सकता हूँ बस वैसे. फ्रस्ट्रेशन होता Yeah, है बट ठीक है, yeah. यू लर्न फ्रॉम इट। दैट इज, देखो दैट इज द रियलिटी, ठीक है। हम अब कुछ बनाए हुए फूल वाली चीजें, अच्छी अच्छी चीजें नहीं सुनाएंगे, करो अप्लाई। दैट इज द रियलिटी, फ्रस्ट्रेशन होगा, ठीक है। बात सुनेगी नहीं कोई लोग, कोई कभी टीचर्स बात नहीं सुनेंगे, कभी स्टूडेंट्स बात नहीं सुनेंगे, कभी कोर टीम बात नहीं सुनेंगी। एज अ लीड यू शुड हैव द क्वालिटीज कि तुम सबको कन्विंस करो, ठीक है, और काम करवा दो। Exactly. तो इज एट द Yeah. एंड ऑफ द डे काम होना चाहिए, सब कुछ हो गया, दैट्स इट। Yeah, very true. And okay, the next question is I have hash note instead of medium. Hari, it's totally fine. You can put hash note. Medium ka link, agar medium mein itna nahi hai, to you can put hash note because many of my friends personally prefer hash note.
because they see it as more search engine optimized and there is a more active community on Hashnode. So it's okay, But you what can put your we can do is Hashnode ये link in same other blog links. हम मीडियम पे भी डाल सकते हैं if you want, ठीक है? सेम ब्लॉग को मीडियम पे भी डाल दो, क्या ही होने वाला है उससे? Yeah, totally fine. Yes. And Megha is, I think, raising hand. Megha, do you have any doubt? Meghan. Okay, so अगर chat के doubts खत्म हो गए हैं, so you can ask like unmuting your mic, you can say anything. Okay, मैंने mic access दे दिया. Just use the like liberty to speak anything. You can say anything. Are you excited? By the end of the session, like, are you guys excited? आपको कुछ भी कहना है, you can share. I'll just get my laptop पे charger. कब से हम दोनों ही बात कर रहे हैं, बस बात किए जा Yeah, रहे हैं। बोर हो It's गए क्या, like- सो गए? नहीं, they were like कि दोनों दीदी बोर कर रही है। बस ये पता है हमको, ये मत बता। Yeah. Hello, Varshadi. So yeah. Yeah, who is it? Hello. कोई तो बोल रहा था। Hello, Varshadi. हाँ, बोलो। आपके साथ इंटरव्यू में कितने लोग थे? मतलब किनका क्वालिफिकेशन होता है इंटरव्यू के लिए? अरे सी बेसिकली इंटरव्यू तो पर्सनली लेता है, बट आई थिंक 5-6 लोग थे। मतलब एप्लीकेशन तो आई थिंक हमारे कैंपस से अराउंड 20 पीपल ने भरा होगा, उसमें से 6-7 लोग शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए। सो हमारी कोर टीम में से भी काफी लोग थे लाइक फॉर इंटरव्यू, बट सबका अलग अलग स्लॉट में होता है। यू गेट दिस लिंक जिसमें आपको स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हो। सो आप जो स्लॉट सिलेक्ट करोगे ना, उस हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल यू विल गेट अ टाइम लाइन कि ओके 14th में से लेकर 20th मई तक यू विल हैव टू सिलेक्ट अ टाइम स्लॉट कि इस टाइम स्लॉट में आपका इंटरव्यू होगा। ओके, तो जब वो शेड्यूल करोगे ना, यू विल गेट एवरीथिंग ऑन योर मेल। यू विल गेट इट फ्रॉम द एडवोकूज वेबसाइट की ओके ये लिंक पे होगा। ये आपको एचआर का नाम वगैरह कुछ नहीं पता होगा, but you'll get all the details कि इस time पे schedule हुआ है। You'll get the link, you'll have to join 15 minutes prior, so you'll just have to join the link, you'll get it on your mail and you'll join it। and मेरे साथ 7 लोग थे जो अलग अलग slots पे दे रहे थे इंटरव्यू, अलग अलग दिनों पे। so it was like उसी टाइमलाइन पे होता है। एंड इंटरव्यू के लिए भी ना always remember there are badges for the interview। okay, ऐसा हो सकता है कि they usually give it out in lots। okay, ऐसे फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट, वैसे तो हो सकता है आपका इंटरव्यू का कॉल फर्स्ट लॉट में ना आए, बट डोंट गिव अप होप। ऐसे मत सोचो कि नहीं आएगा, सेकंड लॉट भी एक निकलता है जिसमें आपको कॉल आ सकता है। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड कि ऐसे लॉट बाय लॉट, बिकॉज इवन एप्लीकेशंस भी लोग लॉट में फिल करते हैं, इंटरव्यू के कॉल्स भी लॉट में आता है। सो अगर आपको चाहिए कि आपका लॉट जल्दी आए, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना एप्लीकेशन थोड़ा जल्दी भरो। डोंट, अगर 27 मार्च का है ना, ये एग्जाम फीस वाला सीन मत करो कि एग्जाम फीस ना एग्जाम के एक दिन पहले भरते हो तो एप्लीकेशन भी एक दिन पहले ही भरोगे। ओके, जस्ट मेक श्योर कि यू फिल इट प्रायर। लाइक 27 मार्च है ना, तो मेक श्योर कि आप ऐसे 20th मार्च तक भर ही दो। ओके, डोंट लाइक वेट टिल द लास्ट मिनट। हो सकता है लास्ट मिनट में कोई एप्लीकेशन सर्वर क्रैश हो गया, बिकॉज आई रिमेम्बर मेरी कॉलेज में लास्ट टाइम क्या हुआ था, 2-3 people they were waiting till the end date, and ऐसा क्या हो गया था कि 27 मार्च they told was the last date, but 26 मार्च को उन्होंने अप्लाई किया, उसमें दिखा रहा था कि the applications are being closed for your region। so ऐसे होता है, ठीक है। जब एंड डेट होता है ना, ऐसे बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि लाइक ऐसे ये आपका रीजन के लिए एप्लीकेशन क्लोज हो गए। सो डोंट वेट टिल द लास्ट मिनट, आप ना पहले से ही भर के रखो एप्लीकेशन at least 10 days prior, because you get this time, you can edit your application, you can do whatever, but make sure you are filling the application rightly before। okay, that's the thing। and agar reject hote hi, will they directly send a mail or application will be on, they don't send a mail, you get an idea कि अगर आपको इंटरव्यू में कॉल नहीं आया तो आप रिजेक्ट हो गए। yeah, so they don't exactly send a mail, it's like कि आपके दोस्त शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए और अगर आपको कॉल नहीं आया तो इट्स ऑब्वियस कि आप सिलेक्ट नहीं हुए हो। इट्स लाइक दैट। ओके, नॉमिनल कोड क्या होता है? okay, very so important। yeah, so basically every GDSE lead like Anushka and I also have got, we have got 3 nominal codes। okay, जो अगर हमें लगता है कि कोई लीड केपेबल या डिजर्विंग है, हम उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। इट्स लाइक मैंने जीडीएसई को अगर मुझे बताना है कि ये बंदा अच्छा है या ये बंदी अच्छी है, मैं उनको डायरेक्टली मेल करने से बजाय मैं आपको नॉमिनेशन कोड दूंगी, एंड उस हिसाब से इट्स लाइक अ रेफरल, क्योंकि मैंने रेफरल दिया एंड उस हिसाब से यू कैन बिकम अ लीड। Recommendation from our side, it's just recommendation from our side, that's it। Yeah। अरे so one more thing, this is a very important thing, glad you asked this question अर्जुन कि नॉमिनेशन कोड क्या होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगेगा नॉमिनेशन कोड मिलने भी क्या हम लीड बनता है। सो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। मेरे बैच के टाइम पे क्या हुआ,
our lead got this nomination codes and मैंने application पहले भर दिया तो मैंने कोई nomination code use नहीं किया. So after which she started giving out nomination codes and जब वो दे रही थी मेरा application भर के submit हो गया था. So I didn't get a nomination code from her. And मेरे साथ जो थे ना 3 लोग, they got the nomination code. Core team में भी थे, they got the nomination code as well. But still they weren't selected. Okay. And there were I think 2 girls who got and 1 boy who got. So ऐसे 2 लड़कियां and 2 लड़के, I think 4 लोगों को मिला था वैसा कुछ. So they were not selected and I was selected. So basically I'll tell you one thing, nomination code I think might give you an edge, but it's not the thing जो आपका like determine करता है कि you'll become the lead or not. If you have it in you, if you have those expertise, if you have that passion and if you have that motivation ना, आपको lead बनने से कोई नहीं रोक सकता. प्लीज डोंट लाइक ये मत सोचना कि नॉमिनेशन कोड नहीं मिला मैं लीड बनूंगा कि नहीं. प्लीज डोंट डू दैट. मुझे भी नहीं मिला था नॉमिनेशन कोड एंड बिलीव मी मेरे कोर टीम के फ्रेंड्स को मिला था, वो नहीं बने थे, मैं बन गई थी. सो दैट्स द थिंग, नॉमिनेशन कोड डजंट मैटर. प्लीज गिव इट योर बेस्ट शॉट, रिप्रेजेंट योरसेल्फ अच्छे से, ठीक है. सो नॉमिनेशन कोड ना बस एक टाइम तक ही रोल प्ले करेगा, वरना तो लाइक जो बेस्ट है वही बनेगा. दैट्स द थिंग. बेसिकली नॉमिनेशन कोड से आई गेस दे विल जस्ट एक बार वापस से ओवरव्यू कर लेंगे वो एप्लीकेशन एक बार. या दैट्स इट, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है उसका. या इतना कुछ नहीं है. मतलब नॉमिनेशन कोड नहीं भी मिला ना तो भी आप बच जाओगे. हाँ, आई एम that एन doesn't एग्जांपल, really मैं matter. बन गई. Yeah. या बेसिकली वही. सब ये स्लॉट के ईमेल आते हैं तो लाइक ये इंटरव्यू वाले स्लॉट के, राइट. तो वहां पे इनको ये दिए होंगी ना डेडलाइंस दी होंगी या फिर टाइमलाइन दिया या होगा या इस वर्ष. यस या टाइमलाइन दी है. रोड टू जीडीसी आई थिंक उसमें दिया है. बेसिकली टाइमलाइन आई थिंक 27 मार्च तक यू हैव दिस एप्लीकेशन का डेडलाइन. उसके बाद अप्रैल मई का जो टेन्योर है ना, अप्रैल टू मई, यू हैव दिस टेस्ट भी मार्च के इसमें ही हो जाता है. यू गेट दिस अप्रैल मई का जो टेन्योर है ना उसमें आपको मेल में आ जाएगा कि यू विल गेट द इंटरव्यू कॉल ऑन द सेकंड वीक ऑफ मई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई. फाइनल रिजल्ट जो है ना जीडीएससी लीड का एप्लीकेशन का टोटल प्रोसेस खत्म होता है लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक वी गॉट आवर रिजल्ट. तो आपका भी उसी टाइम पे आता है, लाइक यू विल गेट योर रिजल्ट फाइनली. डायग्नोस्टिक टेस्ट तो हो गए. अरे दैट्स ग्रेट. यू इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट, इमीडिएटली आफ्टर यू totally great. कंप्लीट द एप्लीकेशन ना तो आपको मेल आ जाएगा, ठीक है. या उसमें यू विल गेट इट. हो जाएगा. जस्ट द इंटरव्यू का उसके थिंग इज उनके ये होते हैं, ठीक है, डेट्स अलोकेटेड होते हैं उनके. तो उसमें तुमको एक स्लॉट चूज करना होता है एंड द स्लॉट्स गेट ऑक्यूपाइड, ठीक है. तो जल्दी से अपना कन्वीनियंट वाला चूज कर लेना. या उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप पहले से भर के रखो एप्लीकेशन, फिर आपके पहले स्लॉट में आ जाएगा. वरना आपको वेट करना होगा, मेरे दोस्त का आ गया पहले स्लॉट में, मेरा कब आएगा. So you'll have to keep waiting. So to avoid that, please fill it in the first slot itself. So that's very important. You know, like if the deadline is 27th of March and it's already 14th of March, so please make sure कि you fill the application before 20th of March at least. Okay, तभी आपका पहले वाले लॉट में आएगा, वरना आपके बाद में वाले लॉट में आएगा. मैं तो डेली एप्लीकेशन देख रहा. हाँ, मैं भी देख रही थी. वो ही लास्ट वीक ऑफ जुलाई, like he's on the daily basis he's reviewing. And वो बंदा क्या कर रहा है, okay, I'll tell you. He's reviewing the thing and every time he'll get some different question in his mind. और रोज उसका क्वेश्चन रहेगा, दीदी ये क्या होता है, दीदी ये ऐसे कैसे होता है, ये कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा. Oh my God, these people are so much excited. Wow, I was yeah. like, Yeah. this project is So even I was compulsory. checking out daily. Yeah, Divyansh, इस project is project compulsory compulsory. because Yes, it is. को तुम डिस्प्ले करोगे, ठीक है. तुम्हें एक चीज आती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, ये मैं लिखती हूँ, ठीक है, एंड ये मैं करके दिखाती हूँ, इसमें डिफरेंस है, ठीक है. मुझे फ्लटर आता है, ये मैं बोल रही हूँ सिर्फ, और मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि मैंने फ्लटर पे ये ऐप बना रहा है. दैट मैटर्स, राइट. दैट इज तुम, एक बात होती है बोलना और एक बात होती है करके दिखाना, तुमको आता है, ठीक है. तो इसीलिए प्रोजेक्ट इज कंपलसरी. तुम एक दो प्रोजेक्ट्स बना के रख दो, अभी नहीं है, अभी एप्लीकेशन में डाल दो कि बने हैं, और तब तक इंटरव्यू की प्रोसेस तक बना लो, ठीक है. छोटे छोटे प्रोजेक्ट से उठा लो, कोई भी ऐसे कुछ है नहीं कि बड़े प्रोजेक्ट से करना है. नो, तुम बेसिक से शुरू कर सकते हो, ठीक है. मेरे तो बड़े बड़े add on to that, yes, to add on to that, it's like project ना minimum एक दो तो बना लो and थोड़े अच्छे, हाँ, like basic भी and थोड़ा अच्छा वाला भी बनाने का try करो. Because even if you have one major project now, it will put a lot of weight. Because in my interview I had some 3-4 projects and they asked me questions on only one project जो मेरा major था. They, you know what they asked me first? They told me which one do you think is your best project. Okay, I told this. So they might ask you it कि इसमें से तुम्हारा best project कौन सा है, and they will like
जो तुम्हारा बेस्ट प्रोजेक्ट है उसी के ऊपर दे विल आस्क द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ही प्रोजेक्ट पे पूछा, बाकी प्रोजेक्ट्स उन्होंने देखे भी नहीं. So they will tell you to explain your best project and make sure your best project is at least थोड़ा major वाला, जो अगर आप बना सकते हो तो, because that might be the thing, because competition is tough. हो सकता है कि your opponents might have like a really good project and you might not have that much of a good project. So try to make it a major one. Because COE and IU, I think हमारी इसमें like थोड़ा famous है, तो many applicants might apply and they might have really good projects with them. So to overcome the competition, you have to make up at least a थोड़ा अच्छा वाला. That's the thing. Please recap the application process steps. हाँ, so सबसे पहले तो it's ये जो 3 questions है, आपका application filling है, जो आपको फॉर्म फिल करना है, जिसमें वीडियो अपलोड करना है प्लस क्वेश्चंस आंसर करना है. देन कम्स द डायग्नोस्टिक एंड लीडरशिप टेस्ट. एक ही टेस्ट में आएगा, हो सकता है वो टेस्ट लैग करे. अनुष्का वाज टेलिंग मी द अदर डे कि टेस्ट लैग करता है, but don't worry, even if it is lagging, you can give it. You have to refresh it and you make sure you give the test, and आपको एक मेल आए कि you have successfully completed the test. Okay, that's the thing. And at the end there is an interview process. Interview जो आपको चलेगा, and after the interview you will get the result. These are the 3 steps. For the test, Varsha, just don't tell them to refresh it, ठीक है? Because it is कि at एक ही बार ही दे सकते हो टेस्ट, ऐसा कुछ होता है. अगर ऐसे कुछ इश्यूज आ रहे हैं तुम्हें, ठीक है, इमीडिएटली वेट, थोड़ा टाइम के लिए वेट करो. लैग कर रहा है तो, नहीं हो रहा है, ठीक है, वेट फॉर सम टाइम, ठीक है, या फिर मोबाइल से वगैरह किसी से भी मेल कर दो, ठीक है, उसका फोटो खींच लो, प्रूफ खींच लो उसका पहले तो, और मेल कर दो उनको कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, ठीक है, and they'll get back to you. ठीक है, they are very Yeah, they're very cooperative. supportive. Yeah. एक दिन में They 24 reply hours में within, तुरंत हाँ, जाएगा. within hours or a day max. वो reply कर देता. ऐसे नहीं कि आपको reply नहीं आएगा. Okay, one last question. I had multiple projects in embedded. Wow, one of the project is going to be patented. Should I share it? And if I want to share, I don't have prototype. Okay. हाँ, you can share ना, तुम बता सकते हो. But अगर वो दिखाने को बोले तो तुम्हें बताना Just tell पड़ेगा. I them don't have it ongoing now. है. ongoing है, You बता can दो tell ongoing. about it. Yeah. You can tell it is ongoing and you don't have, but even if they ask some question, you can describe it. कि ऐसा ऐसा है. That's the thing. Yes. So, any more questions? कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ लो. और we can end it now. I thought कि 1 घंटे में तो 1 घंटा बहुत ज्यादा हो जाएगा. I thought आधे घंटे में will end up. ये खत्म नहीं हो रहा है. अभी तो 1 घंटे से ऊपर हो गया. या. Any more questions you can ask. ठीक है, totally. और And अभी it's very अगर important. I am sharing a feedback link. Okay, मैं feedback link पे share करूंगी. उसमें आपको क्या करना है? So like it's part of a road to GDSE वाला campaign. So make sure you fill the feedback link. क्योंकि and उसमें college का नाम and lead का नाम select करना है. So make sure कि आप हमारा नाम ही select करो and college भी सही वाला college select करो and fill the whole feedback. Okay, it's like proof कि आपने road to GDSE campaign में participate किया. And it might give you an edge कि like they might see कि okay, you're interested and you are participating in such campaigns. So they might actually know about you. So please make sure to fill the feedback link of the road to GDSE thing, which I'm sharing. this is something Okay. you participated in that campaign, वो वाला है क्या वर्षा? Yes, it is something regarding that. Yes. Okay, so I guess मेरा नाम नहीं होगा उसमें. I don't know. I Okay. haven't. Yeah, it's a text box, so they can fill it. Okay. Yeah. Yes. Okay. So make sure कि okay, IU का नहीं है तो okay, CO at least COE वाले जो भर दो, because COE नहीं, community सब spell कर put दो, it. ठीक है. अगर if there is something for selection, ठीक है, और मेरा नाम नहीं आ रहा है तो वर्षा का डाल दो. If there is a text box, then दोनों का नाम डाल दो. From both the colleges, ठीक है. Yeah. Don't be like that, guys. कि मेरे वाले हाँ. मेरा ही डालोगे, उसके बाद दोनों का डाल दो. हाँ. अगर मेरा नहीं आ रहा है तो उसका डाल दो. But I मेरे think college के option में वैसा है. College के option में एक college ही select करना है. वो दो college select नहीं कर सकते. Yeah. वैसे. Same. What about DYP IEMR? You can put Maithili's name. It's okay. ऐसा कुछ नहीं है. no problem. Yeah. Just make sure कि DYP IEMR जो lead बन रहे हो, आप काफी active करो club को, ठीक है? Just make sure कि like इस बार तीनों campuses के clubs equally active रहे. COE, IMR and IU, everyone should be like collaborating and be really active this time. Same हमें question. अच्छा. एक्चुअली इवेंट करना था कोलैबोरेशन में, ठीक है, पर हम कर नहीं पाए. तो we have this Yeah, need of Maithili was about to join, but I think she had some health issues, so she couldn't. Yeah. How many are from IMR? Just raise your hands. I wanted to know. IMR से कितने लोग हैं? 1, 2. Okay. 2 ही लोग हैं. Okay. कोई नहीं. That's great. Yes. Yeah. So like yes.
सो जो रिगार्डिंग द फीडबैक थिंग वही सो कॉलेज का एक ही ऑप्शन आता है, तो कॉलेज के लिए उसके लिए हम टेलिंग कि मतलब कॉलेज का एक ही ऑप्शन आ रहा है ना, सो आईयू वाले आईयू का भर दो, सीओई वाले सीओई का भर दो, इट्स लाइक दैट। ठीक है, वैसे कर सकते हो। यस, एंड वो उसके लिए वो ट्रैक उसी हिसाब से ट्रैक होगा। आई थिंक इनकी इनकी जो एप्लीकेशंस है ना, ये सीओई वाले सीओई वैसे वैसे ट्रैक हाँ होगा। हाँ ओके, हाँ, सो तो बेटर यू सिलेक्ट योर ओन कैंपस, यू मत करो ये सिलेक्ट योर ओन कैंपस वाई वरना उनको ही कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि दो हाँ कैंपसेस टाइप। एग्जैक्टली। यस, या ओके, सो एनी मोर डाउट्स की लाइक कुछ भी? ओके, यू कुछ ओके, नहीं गेस्ट यू आर रहेगा। फ्रॉम डीवाईपी आईएमआर। गेस्ट, आपका कोई नाम नहीं है क्या? आपका नाम गेस्ट है? ओके। That's great. So it's really good to see so many people are here. So like I'll give a future prediction कि इन 18 लोगों में से जो भी है उसमें से 3 लोग होंगे, एक सीओई में से एक होगा, एक आईओ में से होगा और एक आईएमआर में से होगा। Only 3 Congratulations. people will be leads. And I'm very excited to see कि कौन बनेगा। Like it's gonna be a really worth it experience. Okay, and like I would like to see something. When you become a lead ना, just make sure कि like आप जो कर रहे हो, you do everything for the betterment of a community. Your only motive should be like आपको swags मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, done. But आपका motive होना चाहिए कि you're making a difference in the lives of the people. Okay, you're like maybe आपके lectures में उतना नहीं पढ़ा पा रहे हो, आप उतना पढ़ा रहे हो related to Android, related to web or related to something. So make sure you make a difference in the life of the people who are attending your sessions. Okay, it's really sweet. क्यों अगर आपने कोई Android का session लिया, maybe only 50 people are attending, but even if you have got 2 people interested into Android now, that's a very good thing, because that's the thing, that's the main motive of our community, to get more people interested into technology. So when you're becoming a lead, make sure ki you work for the betterment. You're not working only for GDSC, you work for your campus mainly, कि आपके कैंपस में आपको कोडिंग कल्चर लाना है या आपके कैंपस में आपको एक डिफरेंस लाना है। ओके, एंड आप में से काफी लोगों को जिनके लाइक लगता होगा कि हमारी पुरानी जीडीएससी में लाइक ये नहीं हुआ, काश ये होता। सो बी दैट पर्सन जो वो चेंज लाए कि ओके मेरी पुरानी जीडीएससी में ये नहीं हुआ था, मैं नेक्स्ट जीडीएससी में करूंगा। ओके, बिकॉज इट्स लाइक देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, हो सकता है आपके बाद वाले लीड उससे भी अच्छा करे। सो इट्स लाइक वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट कि ये कम्युनिटी कभी डेड ना हो, दिस कम्युनिटी इज देयर, एंड दिस कम्युनिटी इज लाइक conducting events which are benefiting the campus a lot. Okay, so make sure you are benefiting, and make sure people will recognize you only if you are benefiting them. Okay, they would recognize you for your title, they recognize you for the change which you have brought in their lives. Okay, so always remember that कि like आपको हमेशा लोगों की मदद कर, that's the thing. And one more thing, when you become lead, ठीक है, जब lead बन जाओ, तो मेरा फेज ये था, आई वॉज टोटली ब्लैंक्ड आउट, मुझे पता नहीं था क्या करना। मैंने जीडीएससी में पहले काम नहीं किया था, मुझे जीडीएससी कैसे चलाते पता नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है, मैं बस ब्लैंक आउट थी। व्हाट आई डिड वाज, मैंने डीवाईपी के बाकी के लीड्स ढूंढे, कौन कौन सा है, ठीक है। मेरा जो प्रीवियस लीड था ना, आई गेस उन्होंने मुझे नंबर्स दिए थे, वर्षा का वगैरह, ठीक है। तो आई गॉट इन कांटेक्ट विथ हर। मैंने फिर वापस से हमारी जो ग्लोबल मीट होती है या फिर जो इंडिया की मीट होती है, रीजनल मीट होती है, वो ज्वाइन की है। ये जो तुम करते हो ना, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम जाके बहुत सारे लोगों से मिलते हो, ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव जानते हो और क्या चल रहा है तुमको समझ में आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी मीट हो, जब भी इंडिया की मीट हो, जब भी ग्लोबल मीट हो, जाओ अटेंड करो। वी हैव आल्सो टॉक टू पीपल आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ग्लोबल मीट में हमने उनसे बात की है, उनके प्रोजेक्ट्स, उनका पर्सपेक्टिव, वो क्या चाहते हैं, कैसे कम्युनिटी हैंडल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। सो ये सब मैटर करता है, बिकॉज whenever you are exposed to a good environment or a bigger environment ना, your thoughts will grow accordingly. जितना तुम अपना environment bigger बनाओगे, उतना तुम्हारे thoughts improve होते जाएंगे। So ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ community को कुछ देना है। अगर तुम इतना सब कुछ करके खुद बन रहे हो, तो खुद के लिए भी ये सारी चीजें किया करो, ठीक है। Do we have to upload the video on YouTube? Yes, you have to upload it. You can do that in a private thing, ठीक है। या यू कैन मेक इट अनलिस्टेड। ओके, अनलिस्टेड का ऑप्शन आता है जिसमें आपको दिखेगा, लाइक बाकी लोगों को नहीं दिखेगा until and unless you share the link, so you can make it unlisted. टिक द Yeah, ऑप्शन, जिनके पास लिंक है उनको yeah, विजिबल हो, just make वरना वो sure गूगल वालों को ही it is विजिबल नहीं होगा। accessible. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि it is only private to you, just make it unlisted, क्योंकि या ऐसे शेयर private टू का ऑप्शन आई थिंक फैमिली, दिखता नहीं है या लोगों फिर को। शेयर टू Yeah, समवन हु इज लाइक वेरी ट्रस्टवर्दी, कि एक बार चेक कर लो अपने यूट्यूब पे रन हो रहा है, या फिर तुम्हारे ये दूसरे दिख रहा है अकाउंट से चेक कर या लो, ठीक है। बिकॉज इट शुड बी लाइक उनसे वो जो जब रन कर रहे हैं ना उनके थ्रू रन होना चाहिए वो लिंक। ओके, सो मेक श्योर कि इट इज लाइक एक्सेसिबल। यस, ओके, एनीथिंग एल्स सो गाइस?
Can I Otherwise, like request everyone to turn on their cameras if possible? We'll have a last group selfie. Okay, so Varsha is so much obsessed on putting everything on social media. So she wants the Yes. I think people are very shy. They might not turn on. Okay, Okay, people are here we turning on. have. That's great. Yeah, please try to turn on. Come अब on, अभी shy people. मत होगे तो आप लीड बन के क्या करोगे? Okay, let them give a minute to उनके बाल SS वाल Rock ठीक 50 करने में, ये G15 सब doesn't have a करने में. camera. Okay, okay, no worries. Yes. So make sure like जो भी turn on करना चाहता है कर ले. Okay, Advait Phone has a always very good works. GD, na Advait? Okay, phone always works. Bro, are you flexing? Okay, so if anyone wants to turn on, they can. Okay, so yes, this might go on social media, and yeah, and believe me, if you become a GDSC lead, your life will change for the better. Okay, it is a very good experience, honestly. Okay, so It might whenever be you're tiring, taking the but it's very screenshot, fun. Varsha, screenshot जब ले रही हो तो बता के लियो, ठीक है? Okay. Yes, yes. Okay, Prajwal has turned on. Okay, so I'm giving you guys a last chance. I'm clicking. Okay, more people are turning on. Okay, nobody Okay, from that's VIP, great. are you guys? On karo chalo camera, very good. Yeah, On yeah. karo. Yes, सारे COE वाले on कर रहे हैं. Yeah, exactly. Yeah. Okay. Yeah, yeah, yeah. DJ. Oh, DJ. Yes. DJ and Prajwal are from core team only. And Parth. Okay, he's from. Okay, he's wearing Abhivyakti shirt as well. Okay. Great, great, great. Okay. So yeah, I'm clicking one photo. So everyone say cheese. Okay. One photo. Yes. So एक और फोटो लेते हैं, किसी और को टर्न ऑन करना है तो आपके पास लास्ट चांस है आपका. ठीक है, वरना आपकी फोटो सोशल मीडिया पे नहीं आएगी. So if anyone wants to turn on, they can. I'm clicking one more photo. Yeah. Okay, great then. Yeah. So I think now, like, thanks a lot for joining. I think we can end the session now. So किसी को कोई भी queries हो, you can drop into me or Anushka. Like आप कभी भी कोई भी text कर सकते हो. And yeah, I know कि मैं थोड़ा time लेती हूँ reply करने के लिए, या फिर मैं कभी कभार शायद ये miss हो जाता है text. But don't worry, अगर in case ऐसा miss होता है, आप दोबारा try कर सकते हो. Yeah, you can just give me a call like after 3 or 4 p.m. I'm free after that. So you can give me a call after 4 or 5 p.m. So या फिर आप कभी भी text करो. I mostly reply to text. एंड इनकेस आपको कुछ भी लग रहा है, आपका वीडियो रिव्यू करना है या आपके एप्लीकेशन रिस्पॉन्सेज पे रिव्यू करना है, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट एनी टाइम. आई विल हेल्प एवरीवन. ओके, सो या. Same goes with me. Yeah. So yes. So thank you so much, guys. Let's end the meet. Okay. Thank you. Bye Bye bye. bye. See you. All the best Good for the night. GDS Lead applications. All the very best. Bye bye. Bye Go bye. have your dinner. Bye bye. Yeah. Bye. Varsha ended by your side, na? From Yeah, the yeah. I'll end it. Yeah. Okay. Bye.